warm good evening to everyone present here. Before we begin the formal proceedings, I would like to request the team members to kindly to play a specific video that celebrates this academic celebration of the century and a half sessions of GSTS. So I hope you all enjoy this video that will be iterating the journey of our GSTS so far. So I hope you all enjoy this video. Give me 10 seconds. Yes. So, like, we all know that how meaningful that video was and how it told what the true essence of GSTS is and how GSTS has flourished and grown so far. So, there is this particular story of GSTS. Let us take step back to the year 2021. This year when the entire nation was struggling against the exasperating days of the COVID, and those were the days when people were, actually willing to get out of the restrictions, and there was this strong wish to be a part of the world, what it meant to be like, being connected with your friends, your family members and all. And at that time, an academic revolution was budding up in the premises of Shamlal College Evening, which is a premier institute in the University of Delhi.
entitled the Graduate Scholars Talk Series or GSTS, which was the brainchild of Dr. Manish Karmwar from the who was serving as in the history department of the college. The platform brought up an academic revolution for the students who wished to continue their scholarly endeavors in the most authentic and professional ways. This initiative provided a platform to the enthusiastic scholars, to the enthusiastic graduate candidates to present their research works on a topic of their choice. The sessions were mentored and by the dedicated team of GSTS and were critically assessed by our nation's eminent professors. So, what does the story of GSTS tells us? It tells us that sometimes life can be tough and emotions can weigh us down. But remember that with every challenge lies an opportunity for growth. And therefore, we should learn to embrace our emotions, for they are the testament of our resilience and strength. And these are the things, the faith is one thing that, keeps our motivation alive and it drives us towards our goals, and therefore it is okay to feel overwhelmed at such times, but one should never lose sight of the incredible strength that resides within us. We have the power to overcome any obstacle that comes in our way, so we should believe in ourselves, take a deep breath and keep moving forward. So, as cited before, all this thing is possible because of that one faith, faith in one's own capabilities, and faith in the fact that we have that transformative power in all of us. Faith is like a radar that sees through the fog of reality when things, that human eyes cannot see. It is faith, not reason, that impels men to action. And also, Blaise Pascal also said that faith is a sounder guide than reason. Reason can only go so far, but faith has no limits. A very warm good evening to the galaxy of intellectuals present here for the 150th session of the Graduate Scholars Talk series, in the continuation of our series of most exquisite articulations from the best of our speakers. I, Samriddhi Kanpal, currently pursuing Masters of English from the Department of English, University of Delhi, consider it a very heartwarming privilege and pleasure to welcome you all in this academic celebration, and where we are confronting with another of our great milestones. And I extend a heartfelt gratitude to each and every one of you for being a part of this academic celebration that has been extremely dedicated since 150 Sundays for 150 talks, 150 speakers from almost 90 plus different locations of our country, hosting 137 130 plus 140 plus guests of honor from 90 plus, again 90 plus different colleges across the nation, and expressing 150 different ideas. And all of this has been made possible through this one sole aim of enhancing the research work experience of scholars and graduates of this initiative, which is Graduate Scholars Talk series. So there is this one team that works behind this initiative, and this attribute of teamwork is very well appropriately manifested by this dedicated team of moderators of the Graduate Scholars Talk series that include Mr. Shubham Tiwari, Mr. Saurabh Singh, Mr. Ajay Gupta, Ms. Manvi Saraswat, Mr. Shailendra Rathod, Mr. Manthan Tarle, and me, who have been working and exploring the various domains of knowledge and exploring various fields under the guidance and continuous motivation of Dr. Manish Karmwar, who is contributing his esteemed efforts as the advisor of the Graduate Scholars Talk series. uh, Coming to this journey, आज हम 150 sessions total complete कर रहे हैं. So let us take a very brief glimpse of whatever we have achieved so far. Today we are achieving this milestone of 150 talks. We were recently featured in the Changemakers Summit under G20. We have been telecasted twice by Doordarshan News, which featured in the show Good News Jazba India Ka. We have hosted a variety of scholars. We have hosted graduates, postgraduates, students from MPhil, PhD, and another realm, that is the school children as well. So we have been continuing this so far with a range of kaleidoscopic topics.
So, that is what we have done so far. And today, as we all are gathered here to celebrate this academic milestone, this academic celebration, first of all, we will begin our program by acknowledging the presence of the divine energy that Lord Ganesha represents. So, let us embark this on this beautiful day, on this beautiful evening, by acknowledging, the blessings of Lord Ganesha, and invoking him and seeking blessings for him, as he is the proper a manifestation of knowledge and wisdom. So I would like to invite Miss Bhavya for Ganesh Vandana. So Miss Bhavya, over to you. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समः प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात जिनका मुंह घुमावदार है, जिनका शरीर विशाल है, जो अपने भक्त जनों के पाप को तुरंत हर लेते हैं, जो करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी हैं, जो ज्ञान का प्रकाश चारों ओर फैला सकते हैं, जो सभी कार्यों में होने वाली बाधाओं को दूर करते हैं, वे प्रभु आप हमारे सभी कार्यों की बाधाओं को शीघ्र दूर करें। आप हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। धन्यवाद। Thank you so much, Bhavya, for such a melodious start to the event, and also certainly invoking Lord Ganesha and seeking his esteemed blessings. So, before we begin with today's session, it is important to acknowledge some of the most remarkable um, support pillars, who have contributed to this journey with their guidance, with their motivation, and all the possible support. Although there are some of the professors who could not take time because of some prior and urgent engagements, but still I wish to call upon a few of the professors who are here among us today. But before calling them, I would first of all like to acknowledge, the principal of Shamlal College Evening, Professor Hemant Kukreti. सर करेंटली हिंदी साहित्य के बहुत ही हम जानते हैं कि प्रख्यात ज्ञाता हैं, एंड वर्तमान में सर श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में प्रिंसिपल की भूमिका में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। एंड जीएसटीएस का जो अभी तक ग्रोथ हुआ है, 150 तक आना, 100 का सेलिब्रेशन होना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज दैट सर हैज proven to be one of the greatest mentors of this platform. But as I mentioned before, because of some urgent emergencies, Sir could not join us today. But it is important to acknowledge his benign efforts for this platform. Next in the series, I would like to call upon Dr. Pramod Kumar Dwivedi, sir, who is currently contributing his valuable efforts as the IQAC in charge of Shamlal College Evening. And again, sir ने भी GSTS को काफी support किया है, be it the online or the virtual events that we have hosted over a period of time, or the grand celebration of the 100 talks that was hosted, offline. So, sir has proven to be of a great, moral support and a constant motivation for all of us. So, Dr. Pramod, sir, I would like to, seek your insights, कि आपका क्या कहना है on this day when we are achieving this great academic milestone. Over to you, sir. Samriddhi, I think he's not here, so kindly Oh, all call teacher in charge of right. All history right. department. All right, sir. All right. So I could not get a hold of the attendees. So, okay. Next in the series, we have Dr. Pramod sir. Again, he is the teacher in charge in the Shamlal College Evening, and he has been contributing his efforts as, the head of the History Society as well. So, sir has looked after a lot of GSTS events and a lot of events that have been organized under Sakshi Society, that is the History Society of Shamlal College Evening. And sir has also been a guiding light and a very big motivating factor for all of us. And sir, it is a very heartwarming privilege for all of us to have you here among us today. आपने GSTS की जर्नी को GSTS 1 से देखा होगा, being a part of Shamlal College Evening. So हम आपकी insights लेना चाहेंगे कि how does it feel, to see an initiative जो आपके college से start हुआ to come this far, sir. Over to you, sir.
Pramod sir. Welcome, Samriddhi. Am I audible? Am I audible? Yes, sir. हाँ, am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir, आप audible हैं. हाँ. Welcome, Samriddhi. GSTS के उसी में सबसे अच्छा चीज निकल के आता है. और जब कोरोना का पीरियड था तो ये मनीष का प्रपोजल था और शुरू में तो मैं भी बड़ा सशंकित था कि ये कहाँ तक चल पाएगा जीएसटीएस, क्योंकि मुझे नहीं था इतना विश्वास नहीं था कि जीएसटीएस ग्रेजुएशन के बच्चे इतने डिटेल में प्रेजेंटेशन दे पाएंगे और कितना दिन ये चलेगा, कितने सप्ताह चलेगा. लेकिन जो हमारा आज 150th लेक्चर सीरीज ये है, उसको देख के लगता है कि मैं गलत था उस समय. और फिर भी मैंने मनीष को कहा कि मेरी पूरी सपोर्ट है. उस समय भी मैं ही टीचर इंचार्ज था. 2 ही हम लोग डिपार्टमेंट में है तो टीचर इंचार्ज बदलते रहते हैं अल्टरनेट ईयर. डीएन सिंह कभी रहते हैं, कभी मैं रहता हूँ. तो ये बड़ा अच्छा जर्नी हम लोग का रहा हिस्ट्री डिपार्टमेंट का और अभी भी चल रहा है. और मुझे लगता है कि हम पता नहीं ये जाके शायद ही रुके, ये चलता रहेगा. मनीष भी अभी इसी यूनिवर्सिटी में है ही और मेरा तो कम ही समय रह गया है, 2-3 साल रह गया और लेकिन 2-3 साल तक तो हूँ ही. और नई जो टीम आई है डिपार्टमेंट में वो लोग भी इंटरेस्टेड इसको हैं चलाने में, जो नए कलीग्स आए हैं. तो मुझे लगता है कि ये अच्छा है, चलेगा. और इससे मुझे एक चीज बड़ा संतुष्टि होती है, बड़ा मैं फील करता हूँ कि हमारे ग्रेजुएट जो स्कॉलर्स हैं वो कितना निखर के आ रहे हैं. मैं जब ग्रेजुएशन में था तब नहीं सोचता था इतना, मतलब हमारी सोच नहीं थी इस तरीके का कि प्रेजेंटेशन तब भी हम लोग करते थे सेमिनार वगैरह में, साल में एक आध. ये नहीं कि हर वीक में एक रिसर्च पूरी फुली रिसर्च प्रेजेंटेशन दिया जाए. तो so nice of you, thank you to you, to all the team and you also, and hope कि ये चलेगा हमारा और भविष्य में और अच्छा करेगा. थैंक यू. थैंक यू सो मच सर. सबसे पहले तो हम वी आर एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि आपने आप इस इवेंट में आए. एंड बट ऑल्सो वी हैव अनदर अपडेट दैट डॉक्टर प्रमोद कुमार द्विवेदी इज हियर अगेन. सो सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव अस योर इनसाइट्स एंड योर वर्ड्स बिफोर वी बिगिन द इवेंट सर. Dr. Pramod Kumar Dwivedi, sir, who is currently contributing his benign efforts as the IQAC in charge of Shamlal College Evening. Sir, if you can hear me, kindly come up and give us your precious remarks. Sir, kindly unmute the mic. I think it's the mic is mute. Yes. सभी को मेरा नमस्कार. मनीष कर्मा जी के प्रयास से और प्रमोद सर के प्रयास से और अन्य सभी महाविद्यालय के शिक्षकों, हमारे प्राचार्य और हमारे सभी प्रिय विद्यार्थियों के प्रयास से यह जो यात्रा है इतने लंबे समय से चल रही है और इतनी लंबी दूरी तय कर चुकी है, यह बहुत ही गर्व की बात है. पहले हमें लगता था कि हम 50 कार्यक्रम करेंगे तो एक अच्छी उपलब्धि होगी. 50 पूरा हुआ, फिर 100 पूरा हुआ और अब 150. कितनी खुशी होती है और कितना गर्व होता है अपने महाविद्यालय पर और महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर, साक्ष्य संस्था से जुड़े सभी विद्यार्थियों पर. यह कोई कहने की बात नहीं है. और सबसे जो बड़ा आधार रहा है इस पूरे आयोजन के पीछे वह डॉक्टर मनीष कर्मवार जी का, उन्हीं की सोच की यह उपज रही है यात्रा.
जो आज तक चल रही है और इसके कारण हमारी इतनी बड़ी पहचान बनी है। आज का जो विषय है वह नॉर्थ इंडिया और साउथ को जोड़ने को लेकर है। तो मुझे ये भी उम्मीद है कि हमारा जो यह आयोजन है यह भी इसी तरह से अखिल भारतीय विस्तार को प्राप्त करेगा। मेरी शुभकामनाएं हैं पूरी टीम को और IQAC पूरी तरह से इस प्रयास के साथ रहेगी, इसका मेरी तरफ से पूर्ण आश्वासन भी है। सभी को महाविद्यालयों को पुनः इस बात की बधाई कि हम 150 के अंक पर पहुंचे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Thank you so much for your warm words. And Elliot Eisner, who is professor emeritus of education and art at Stanford University, he says that the satisfactions of teaching extend beyond the academic. Indeed, the most lasting contributions come from rescuing a child from despair, restoring a sense of hope, and soothing a discomfort. तो मैं अभी इस मोमेंट को भी उसी तरीके से लेना चाहूंगी टू थैंक ऑल द टीचर्स एंड प्रोफेसर्स हु हैव बीन कांस्टेंट सपोर्टर्स ऑफ GSTS, नॉट ओनली इन द एकेडमिक जर्नी जो स्टूडेंट्स ने जो हासिल करी है, बट ऑल्सो मोटिवेटिंग देम एज एन इंडिविजुअल टू प्रमोट better personality of all those scholars that we have hosted so far. जितने नाम मुझे भी स्क्रीन पे दिख पा रहे हैं, I would like to acknowledge all those teachers that include Professor Rakesh, Professor Pankajendra sir, Professor Neena ma'am, Professor Mala ma'am, Professor Tapan, Professor Neha, and Professor Shashi. And I'm very sorry, I can just see a limited number of professors. But also, as I mentioned before, abhi tak GSTS ne almost 150 guests of honor ko host kiya hai. So it would be a bit time taking to acknowledge each and everyone's name. But name it. But obviously, it doesn't mean that we are missing out on your valuable presence and insights. We surely acknowledge all your presence and all your support that we have received so far, and it is because of all these extremely great mentors and professors that have been a part of the platform, जिसकी वजह से आज GSTS ने 150th milestone achieve किया है. So a very big thanks to all of the professors who have been a part of this platform. And also, it is a very humble request to all of you to kindly stay till the end of the event, because I'm very much sure that this particular session is going to bring about a lot of new insights about GSTS and about a lot many other things with a great discussion. So coming to whatever the matter of concern for today's session is, we see कि North India और South India के बीच में बहुत ही बड़ा cultural और linguistic divide है. We usually see it that way. North India में हम कुछ specific languages को dominate होते हुए देखते हैं, whereas in South India we see some other languages which are widely spoken. There are a lot of historical, geographical, and cultural factors behind these differences. There is a variety of traditions होती है, food different है, festivals different है, temples different है, construction different है. But besides all of this, we at times forget the fact that despite all these cultural, regional, socio-political diversities, our nation stands as one identity. It is a whole in itself. It exists in entirety. So all of this distinction of segregating our nation in different regions into different domains is something which is not a part of our tradition. हमारे tradition का ये part नहीं रहा है कि हम
अपने नेशन को डिफरेंट आइडेंटिटीज में बटा हुआ देखें, बट रादर इट इज वन यूनिफाइंग आइडेंटिटी दैट इंडिया कैरीज. So today's speaker, Mr. Manthan Tarale, is here among us to bridge that gap, that has been created between the North and the South through his talk, which is Bridging the Gap, North and South. So, Mr. Manthan, over to you. And I'm very much sure that आपकी ये talk से, दोनों क्षेत्रों में जो differences हैं, जितनी भी, cultural differences हैं, I think वो सबको हम acceptance की तरह देखेंगे and not as a point of difference. So, it's over to you, Manthan, and I'm very much sure that it is going to be a very great session from your end. So over to you, Manthan. Thank you, Samriddhi. Samriddhi, sorry to interrupt you. Yes. Manthan, give me 10 seconds. And also, thanks to USP of this GSTS by students. So some of my previous speakers are also here. So thank you very much for coming and joining us. Kindly stay tuned. And we are going to invite you to take your remarks after this session. And so many of my other friends are also Neeraj Kumar Mishra. I think Dr. Ranjan is also here. So Dr. Pankajendra, Neena ma'am is here. And so thank you very much for coming and join us. And we'll definitely invite you after the session is over by Manthan, and kindly stay till end. Today we are not going to complete till 6. We are hosting till 6:30, and my fellow colleagues from my former college. तो मुझे आदत है कॉलेज से काफी कम लोग दिख रहे हैं टुडे इज मकर संक्रांति और व्हाट्सएवर, लेकिन थैंक यू फॉर दोज हु आर joining here. Thank you very much. So over to you, Manthan. It is our composite culture which makes us into one nation. India's nationhood is not one language, one religion, one enemy. It is the perennial universalism of 1.3 billion people who use more than 122 languages and 1600 dialects in their everyday lives, practices 7 major religions, belong to 3 major ethnic groups, that is Aryans, Mongoloids, and Dravidians, and still live under one system, one flag, and one identity of being Bharatiya, and have no enemies. That is what makes Bharat a diverse and united nation. A very pleasant good evening, everyone. मेरा नाम मंथन है, स्कॉलर ऑफ 3rd ईयर, श्यामलाल कॉलेज इवनिंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. आज हम सब GSTS का 150th टॉक विटनेस करने जा रहे हैं, और इस टॉक के लिए मुझे पार्टिसिपेट करने का जो मौका मिला, उसके लिए थैंक यू टू GSTS कि आपने मुझे इतने बड़े मौके पे पार्टिसिपेट करने का मौका दिया. एंड आप सभी ने मेरे टॉपिक का नाम तो देखा ही होगा, दैट इज ब्रिजिंग द गैप नॉर्थ एंड साउथ. सो ये टॉपिक चूज करने के पीछे 2 रीजन रहे हैं कि मैंने ये टॉपिक चूज किया. पहला रीजन ये टॉपिक चूज करने के पीछे ये रहा कि मैं खुद कर्नाटका से बिलोंग करता हूं और मेरी जो स्टेट लैंग्वेज है वो कन्नड़ा है. अगर मैं अपने कल्चर की बात करूं तो मेरा कल्चर महाराष्ट्रियन है, यानी जो मेरी मदर टंग है, मातृभाषा है, वो मराठी है. और इसके बाद अब मैं दिल्ली आके हिंदी ऑनर्स पढ़ रहा हूँ, यानी हिंदी सीख रहा हूँ. तो ये 2 से 3 लैंग्वेजेस और 2 से 3 कल्चर्स जो मेरा टच रहा है, कहीं ना कहीं इसी वजह से मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे चूज करना चाहिए, इस टॉपिक पे मुझे रिसर्च करना चाहिए. दूसरा रीजन ये रहा ये टॉपिक चूज करने के पीछे कि आजकल हम सब जानते हैं कि पूरे देश भर में चर्चाएं चल रही है सबका साथ सबका विकास, और बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भी चल रहे हैं, बहुत सारे आइडियाज चल रहे हैं, जैसे कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम लोग बात कर रहे हैं, हर घर तिरंगा, रन फॉर यूनिटी जैसे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, 1
नेशन वन आधार कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। तो इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है ताकि सारे जो इस डाइवर्स कंट्री के सारे लोगों को एक साथ ला सके। और इसी के बीच में कुछ कंट्रोवर्सीज भी हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली एक नॉर्थ एंड साउथ की कंट्रोवर्सी चली थी जहाँ पे इस विषय पे चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से हमारे जो देश में हमारे भारत का जो उत्तरी भाग है यानी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ये एक दूसरे से किस तरह से अलग है। तो इन्हीं सारी चीजों ने मुझे इंस्पायर किया कि मैं इस टॉपिक को चूज करूं, इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करूं। सो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इस टॉक में मेरे जो ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे उसमें मेरा पहला ऑब्जेक्टिव रहेगा हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। हम नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की हिस्ट्री और ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे कि उसकी ज्योग्राफी कैसी रही और हिस्ट्री कैसी रही और उसका जो इम्पैक्ट है वो वहाँ की मतलब उन रीजन्स की डेमोग्राफी पे, कल्चर पे किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ा। उसके बाद सेकंड मेरा ऑब्जेक्टिव रहेगा व्हाई देयर इज नीड ऑफ ब्रिजिंग बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। क्यों हमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को ब्रिज करने की जरूरत है। तो ऑब्वियसली कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे होंगे जिनकी वजह से ये डिवाइड पैदा हुआ है या फिर कुछ ऐसी फॉल्ट लाइन्स रही होंगी जिसकी वजह से जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं वो साउथ इंडिया के लोगों को अलग नजर से देखते हैं और जो साउथ इंडियंस है वो नॉर्थ इंडियंस को थोड़ा सा अलग नजर से देखते हैं। तो इन्हीं फॉल्ट लाइन्स के बारे में हम मेरे थर्ड ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे, दैट इज फॉल्ट लाइन्स बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। उसके बाद मेरा फोर्थ ऑब्जेक्टिव रहेगा ब्रिजिंग द गैप, कि किस तरीके से हम इस नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो गैप है उसको ब्रिज कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। और उसके बाद फिफ्थ ऑब्जेक्टिव में मेरे हम बात करेंगे कल्चरल रिलेशंस बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। जो साउथ इंडिया है उसमें और नॉर्थ इंडिया के बीच में कल्चरल रिलेशंस दोनों के बीच में किस तरीके के रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे और फाइनली हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम माय फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दैट इज हिस्टोरिकल ज्योग्राफी ऑफ नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जब भी हम नॉर्थ और साउथ इंडिया की बात करते हैं तब कोई ऑफिशियली ऐसे फैक्टर्स नहीं रहे जिन पे हम डिसाइड कर सके कि यहाँ से नॉर्थ इंडिया शुरू होता है और यहाँ से साउथ इंडिया शुरू होता है। लेकिन फिर भी अगर एक ज्योग्राफिकल व्यू से हम देखने की कोशिश करेंगे तो जो विंध्यास और सतपुरा हिल्स हैं उनको और वहां से बहने वाली जो नर्मदा और महानदी रिवर्स हैं उनको हम कंसिडर करते हैं नॉर्दर्न और सदर्न रीजन को डिवाइड करने के लिए। और इस रीजन के जो नॉर्थ में स्टेट्स होंगे उनको हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं और इस रीजन के साउथ में जो मोटे मोटे तरह पे स्टेट्स आएंगे उनको हम सदर्न इंडिया कहते हैं। सो अगर हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में मोस्टली मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे मोस्टली जो हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स है वो यहाँ से मतलब नॉर्थ इंडिया में आते हैं। और साउथ इंडिया को जो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु जैसे जो स्टेट्स है वो रिप्रेजेंट करते हैं जिनकी अपनी अपनी एक अलग एक लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है जहाँ पे खुद बहुत सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। सो कमिंग टुवर्ड्स द हिस्ट्री, इन्हीं जो नॉर्थ इंडिया की और साउथ इंडिया की जो ज्योग्राफी रही है उनमें भी कुछ डिफरेंस रहा है जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेजन्स वर मोर फ्रिक्वेंट इन नॉर्थ इंडिया। जो नॉर्थ इंडिया है वो फॉरेन इन्वेजन्स यानी जो बाहरी आक्रमण थे उनके इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा रहा और इसलिए हमें देखने को मिलता है कि जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे एक संस्कृति पे दूसरी संस्कृति का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। यानी कोई एक संस्कृति आती फिर अगर कोई सेंट्रल एशिया से आक्रमण या फिर इन्वेजन होता तो उस तरीके से वहां का कल्चर, यहाँ की जो मेन कल्चरल डेमोग्राफी है उसको इफेक्ट करता हुआ हमें दिखता है। वही अगर हम सदर्न इंडिया की बात करें तो सदर्न इंडिया जो है वो नॉर्दर्न इंडिया से बहुत ज्यादा दूर है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो इन्वेजन्स थे उनसे हमारा जो साउथ इंडिया था बहुत ही ज्यादा सेफ था क्योंकि तीनों तरफ से जो है वो ओशियन से घिरा हुआ है और एक पीसफुल सिचुएशन बहुत ही लंबे समय तक हमें देखने को मिली सदर्न इंडिया में, जो कि ट्रेड के लिए यानी व्यापार के लिए बहुत ही अच्छी सिचुएशन थी। और इसीलिए साउथ इंडिया में हमें जो स्पेशली अगर मैं केरला की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे प्रूफ्स मिलते हैं कि 3000 BC में केरला के जो ट्रेड के प्रूफ्स हमें मिलते हैं वहां पे कि किस तरीके से केरला जो है
वो स्पाइसेस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वहां पे करता था। केरला जो है वो बहुत ही फेमस था और इसी ट्रेड की वजह से वो इजिप्शियंस हो गए, अरब्स हो गए और बेबीलोनियंस हो गए, इन सभी फॉरेनर्स को अट्रैक्ट किया करता था। और उसके बाद रोमन ट्रेडर्स जो थे उन्होंने 2000 साल पहले यहाँ पे हमारे मलबार कोस्ट पे विजिट किया था। और अगर रिलीजन के एंगल से भी देखें तो माना जाता है कि साउथ इंडिया में जो रिलीजन इंट्रोड्यूस हुआ वो व्यापार के थ्रू, ट्रेड के थ्रू ही हुआ है। यानी एक शांतिपूर्व तरीके से जो बाहरी संस्कृति या फिर जो रिलीजन्स है उनका इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस होता हुआ दिखता है। लेकिन वही नॉर्थ इंडिया की हम बात करें तो नॉर्थ इंडिया में जो रिलीजन इंट्रोड्यूस हुआ वो इन्वेजन और जो बाहरी आक्रमण थे उनके थ्रू हमें इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखता है। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया उस हिसाब से उस पे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम द आउटकम्स ऑफ दिस हिस्टोरिकल इवेंट्स रिफ्लेक्ट इन इंडियाज रिच टेपेस्ट्री ऑफ कल्चरल प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। अगर हम 9 क्लासिकल डांस फॉर्म जो भारतीय डांस फॉर्म्स है उनको कंसिडर करें तो मोस्टली उसमें से जो 4 डांस फॉर्म है मेजर वो साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और सिर्फ एक डांस फॉर्म है जो नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है जिसे हम कथक के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से जो साउथ इंडियन कल्चर है उसको फ्लोरिश होने का टाइम मिला बहुत ज्यादा और नॉर्थ इंडिया जो है वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की वजह से बहुत ज्यादा वहां पे इन्फ्लुएंस नहीं, मतलब फ्लोरिश कल्चर नहीं हो पाया और इसलिए बहुत ही मिक्स्ड कल्चर वहां पे हमें देखने को मिलता है। वही अगर हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो वी कैन सी द ओवरलैप ऑफ लैंग्वेजेस एंड कल्चर इन द नॉर्थ इंडिया। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो लैंग्वेज में भी बहुत ज्यादा ओवरलैप देखने को मिलता है। जैसे कि हिंदी हो गई, हिंदी के बाद जो उर्दू लैंग्वेज हो गई और बहुत सारी जो नॉर्दर्न इंडियन लैंग्वेजेस है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा सिमिलर है। वही साउथ इंडिया की बात करें तो सदर्न इंडिया में जो स्टेट्स है उनकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस है। जैसे कि कर्नाटका की अपनी लैंग्वेज कन्नड़ा वहां पे बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। वही अगर केरला की बात करें तो वहां पे मलयालम बोली जाती है, तमिलनाडु की बात करें तो वहां पे तमिल बोली जाती है। तो सदर्न इंडिया को जो है बहुत ज्यादा टाइम मिला एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से दूर होने की वजह से कि वो फ्लोरिश हो सके और वहां की लैंग्वेज जो है वो माना जाता है कि लगभग 5000 साल से भी पुरानी, यानी संस्कृत के टाइम की ही है। और वही नॉर्दर्न इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न इंडिया की लैंग्वेजेस में हमें बहुत ज्यादा ट्रांजिशन देखने को मिलता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ज्योग्राफिकल और हिस्टोरिकल चीजों की वजह से वहां के कल्चर पे और डेमोग्राफी पे हमें उसका फर्क देखने को मिलता है। सो व्हाई देयर इज नीड ऑफ ब्रिजिंग बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ये तो कल्चरल डाइवर्सिटी थी, फिर हमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को ब्रिज करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो रिसेंटली एक न्यूज आई थी और हमारे देश भर में 2 इवेंट ऑर्गेनाइज हुए थे, मतलब जो कि बहुत फेमस, मतलब जिन पे बहुत ज्यादा चर्चा हुई। उसमें से एक था कटिंग साउथ जो कि केरला में एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था और उसी के रिटेलिएशन में और एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसका नाम है ब्रिजिंग साउथ। तो अगर कटिंग साउथ जो इवेंट हुआ था उसकी मैं बात करूं तो वो कनाडा के कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस और केरला के कुछ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने ऑर्गेनाइज किया था, जिसके आधार पे वहां पे ये चर्चा हुई थी कि मतलब जो सोवरेन स्टेट्स ऑफ सदर्न इंडिया, यानी साउथ इंडिया के स्टेट्स के बारे में, उनकी डेवलपमेंट के बारे में और कुछ कुछ जो डिस्क्रिमिनेशन साउथ इंडिया के साथ हो रहे हैं उसके बारे में, ऐसे कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई थी। और उसी के रिटेलिएशन में ब्रिजिंग साउथ करके जो केसरी करके एक संस्था है उन्होंने, और जो प्रज्ञा प्रवाह करके एक संस्था है, उन्होंने मिलकर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, दैट इज ब्रिजिंग साउथ। उन्होंने इसके रिटेलिएशन में किया था कि आप इस तरीके से भारत के दक्षिणी हिस्से को, जो कि भारत का ही एक इंटीग्रल पार्ट है, उसको इस अलग तरीके से दिखाने की कोशिश ना करें। जो ब्रिजिंग साउथ यानी भारत पूरा एक है, ये मैसेज देने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज किया था। तो इसी के बाद से पूरे देश में हमें एक चर्चा देखने को मिली कि किस तरीके से हमारा जो भारत का उत्तरी भाग है वो हमारी दक्षिणी भाग से राजनीतिक तरीके से हो गया, आर्थिक तरीके से हो गया, बाकी बहुत सारी दृष्टि से अलग अलग है। तो एक डिबेट पूरे देश में हमें इसके ऊपर देखने को मिली। वैसे तो ये डिबेट कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है,
और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हमें देखने को मिलते हैं जिन पे साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। तो ऑब्वियसली कुछ फैक्टर्स तो है, तो हम पॉलिटिक्स में ना जाते हुए एग्जैक्ट वहां पे क्या प्रॉब्लम्स है ये जानने की थोड़ी बहुत कोशिश करेंगे कि सदर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया के बीच में ऐसी क्या फॉल्ट लाइंस रही जिसकी वजह से हमें एक डिवाइड देखने को मिलता है। सो द फॉल्ट लाइंस अलोंग द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। सो फर्स्ट जो फॉल्ट लाइन थी वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी। टू क्रिश्चियन मिशनरीज स्कॉलर्स, जो पहले है फ्रांसिस व्हाइट एलिस और दूसरे रॉबर्ट कार्डवेल, ये दो जो स्कॉलर थे इन्होंने सबसे पहले हमारे जो देश में पूरी लैंग्वेजेस है उनका एग्जामिनेशन किया और टू मेजर ग्रुप्स बनाए भाषा परिवारों के, जिनको हम लैंग्वेज फैमिलीज के नाम से जानते हैं। एक जो फैमिली उन्होंने बनाई इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली, जिसे हम हिंदी में भारोपीय भाषा परिवार के नाम से जानते हैं, और दूसरा द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली जिसे हम द्रविडियन भाषा परिवार के नाम से जानते हैं। तो क्या हुआ कि जो इंडो आर्यन लैंग्वेज फैमिली है उसमें मोस्टली हमें नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेजेस देखने को मिलती है जो कि संस्कृत की ब्रांचेस रही है ज्यादातर, और जो साउथ इंडिया की जो लैंग्वेजेस है वो द्रविडियन परिवार में आती है। तो कहीं ना कहीं यही से एक शुरुआत हुई कि साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के लोग एक दूसरे को थोड़ा अलग अलग देखने लगे, उनको लगा कि हमारे रूट्स अलग अलग है। उसके बाद एक फेमस जर्मन स्कॉलर है मैक्स मूलर, उन्होंने ही ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी दी थी 1848 में, और इसी थ्योरी ने कहीं ना कहीं एक आइडिया दिया सबको रफली कि किस तरीके से जो व्हाइट स्किन वाले आर्यंस है उन्होंने ब्लैक स्किन वाले द्रविडियंस को माइग्रेट करवाया साउथ की तरफ, और जो द्रविडियंस थे उनके रिलेशंस हरापन सिविलाइजेशन से भी जोड़े जाते हैं, और इसी तरीके से एक डिवाइड देखने को मिला। हालांकि बहुत सारे भारतीय विद्वान हैं, बाकी सारे भी मतलब जो स्कॉलर्स रहे उन्होंने इस थ्योरी को डिसअप्रूव किया, चाहे वो हिस्टोरिकली हो, एंथ्रोपोलॉजिकली हो, जेनेटिकली हो, लेकिन फिर भी डैमेज ऑलरेडी हो चुका था और एक आइडिया रफली मिल चुका था लोगों को डिवाइड होने के लिए, और जो बहुत सारे पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इसका फायदा भी उठाया। और एक द्रविड़ नाडु नाम के कॉन्सेप्ट की हम जब बात करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं इसी से इमर्ज होके आया है। सो द्रविड़ नाडु एज अ पॉलिटिकल आइडिया वाज फर्स्ट फ्लोटेड बाय पेरियार ईवी रामस्वामी। तो जो ये इरोडी वेंकटप्पा रामस्वामी थे, ये बहुत ही फेमस इंडियन सोशलिस्ट और पॉलिटिशियन है। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको एज अ रिस्पेक्ट एक टाइटल देते हैं पेरियार करके, और इनको फादर ऑफ द्रविडियन मूवमेंट भी कहा जाता है। तो इन्होंने 1930s में एक एंटी आर्यनिज्म वाली विचारधारा शुरू की, और इनका मानना था कि जो साउथ के स्टेट्स है वो बाकी इंडिया से अलग है और इनको एक अलग सोवरियन नेशन बनाना चाहिए, और इसकी मांग बहुत ज्यादा वहीं से उठने लगी। बहुत सारे लोगों ने इसे साउथ इंडिया के नाम से जाना, कुछ लोगों ने इसे डेक्कन फेडरेशन कहा, कुछ लोगों ने दक्षिण पट नाम से जाना, लेकिन सबसे जो ज्यादा फेमस नाम था वो था द्रविड़ नाडु, एक अलग नेशन का आइडिया था। और ये जो आइडिया था वो 1940s और 60s में बहुत ज्यादा फेमस था। इनिशियली ये अगर मूवमेंट की इस बात करें तो तमिलनाडु तक ही सीमित था, लेकिन बाद में इसे फैला के बाकी जो द्रविडियन स्टेट्स है, खासकर केरला, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, इनको भी अपने आप में शामिल करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ रीजंस रहे जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसमें से दो मेन रीजन रहे। पहला रीजन तो ये रहा कि जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था तो इस तरीके के जो सक्सेशनिज्म के एक्ट है उनको इलीगल एक्ट बताया गया, और दूसरा रीजन ये रहा कि जो बाकी के स्टेट्स थे सदर्न इंडिया में, उनको लगा बिकॉज ऑफ तमिल डोमिनेंस, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ तमिल डोमिनेंस, उन्होंने भी इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन रही है हमारी हिस्ट्री में जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है। सेकेंड, लैंग्वेज, अभी हमने बात भी की उस पर कि किस तरीके से जो लैंग्वेज है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। बहुत सारे पार्ट्स है, लेकिन मेजरली भारोपीय भाषा परिवार और द्रविडियन भाषा परिवार, ये दो बड़े फैमिली ग्रुप रहे हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया में मेनली संस्कृत की ब्रांचेस आती है, मैंने पहले भी बताया था, और सदर्न इंडिया के अपनी अपनी अलग अलग लैंग्वेजेस है। तो इसीलिए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके जब डिबेट हुई थी, तब there was a lot of agitation and violence around the issue of national language during the post-independence times, like anti-Hindi agitation in Tamil Nadu in 1960s. तो फाइनली जब नेहरू जी एग्री हुए कि
तब तक जब तक जो सदर्न स्टेट्स है, खासकर नॉन हिंदी स्टेट्स, वो हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कंप्लीट ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट नहीं करते, तब तक हम इनडेफिनेट टाइम के लिए इंग्लिश को भी ऑफिशियल लैंग्वेज में रखेंगे। तो इस तरीके से वो टेम्पररीली वो इशू जो है वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिखा हमें। लेकिन फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है, आर्टिकल 351, अगर उसकी हम बात करें तो वो बताता है गवर्नमेंट को कि हिंदी, गवर्नमेंट को हिंदी को प्रमोट करने के लिए बोलता है। और हमारी गवर्नमेंट भी जो है वो हिंदी को समय समय पर प्रमोट करने की कोशिश करती है, लेकिन इसका रिटेलिएशन या फिर इसका जो अपोजिशन है वो भी हमें अपोज भी देखने को मिलता है बहुत ज्यादा। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि बेंगलुरु में जब मेट्रो शुरू हुई थी, नम्मा मेट्रो के नाम से जिसे जाना जाता है, वहां पे हिंदी साइन बोर्ड्स का अपोज किया जाता है। तो लैंग्वेज एक फॉल्ट लाइन रही है इस डिवाइड के बीच में। उसके बाद रीजनलिज्म, रीजनलिज्म की हम बात करें तो इंडिपेंडेंस के बाद जब 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था, तब हमारे पास टोटल 14 स्टेट्स थे। और अगर हम आज की बात करें तो लगभग आज हमारे पास उससे डबल यानी 28 स्टेट्स है। तो कहीं ना कहीं ये चीज दिखाती है कि ये कहीं ना कहीं बढ़ती हुई रीजनलिज्म को ही इंडिकेट करता है। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे कि रीजनलिज्म के आधार पे खालिस्तान मूवमेंट चला था, उसके बाद गोरखालैंड की डिमांड चली थी, द्रविड़ नाडु की अभी हमने बात की। लेकिन इसमें से बहुत सारे जो डिमांड्स है वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जब ये बताया गया कि सक्सेशनिज्म को इलीगल बताया गया तब रुक गए थे। लेकिन फिर भी अगर हम सदर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पे कुछ अमाउंट में हमें रीजनलिज्म ज्यादा दिखता है। जहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं कर्नाटका का, कि बीच में कर्नाटका ने डिमांड की थी कि उन्हें अपना एक अलग स्टेट फ्लैग चाहिए जो कि येलो एंड रेड उसका कलर है, जो वहाँ के कल्चर को इंडिकेट करता है, तो उन्होंने डिमांड की थी। उसके बाद जिस तरह से हमारा एक नेशनल एंथम है जन गण मन, उसी तरीके से कर्नाटका का भी अपना एक स्टेट एंथम है जो कुछ इस तरीके से है, जय भारत जननीय तनुजाते जय है कर्नाटक माते। तो वहां पे ये सारी चीजें वहां की रीजनल अस्मिता या फिर रीजनलिज्म को थोड़ा सा दिखाती है। और इसके पीछे एक रीजन ये भी रहा है कि 1960s में जब 1965 में हिंदी कंप्लीटली ऑफिशियल लैंग्वेज बनने वाली थी, उस समय पे बहुत ही ज्यादा हिंदी का जो प्रचार प्रसार हो रहा था, उसकी वजह से एक डर भी रहा सदर्न इंडिया के जो लोग हैं उनमें कि नॉर्दर्नर्स कहीं ना कहीं ट्राई कर रहे हैं अपना कल्चर और लैंग्वेज हम पे इम्पोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये रीजनलिज्म जो है वो एक फॉल्ट लाइन रहा है। उसके बाद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो इशू एंड क्वेश्चन ऑन डिलिमिटेशन हैज बिकम अ हार्ड नट टू क्रैक। जो हमारी लोकसभा की सीट्स है, जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जिसे हम कहते हैं सेंट्रल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसकी अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सीट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया। मतलब जो उस एरिया में जितनी पॉपुलेशन है उसी हिसाब से उस स्टेट को नंबर ऑफ सीट्स दी जाएंगी लोकसभा की। तो इस आधार पे मतलब एक फॉर्मूला बनाया गया था। लेकिन आजादी के बाद क्या हुआ कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी और ये फॉर्मूला कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होने लगा, और इसी आधार पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज भी अप्लाई की। फैमिली प्लानिंग पॉलिसी उसमें से एक है, जिसको सदर्न जो स्टेट्स है उन्होंने बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया और अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल में भी लेके आ गए। लेकिन अगर नॉर्दर्न स्टेट्स की हम बात करें तो वो कहीं ना कहीं अपनी पॉपुलेशन को उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हमें दिखता है कि किस तरीके से जो नॉर्दर्न पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो साउथ इंडिया जो है वो बहुत सारी अपनी जो सीट्स है और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको लूज करने वाला है। अगर हम 2031 तक लोकसभा की बहुत सारी सीट्स बढ़ा भी दे तो भी साउथ इंडिया जो है वो कहीं ना कहीं सीट्स लूज करने वाला है, और ये चीज वहां के पॉलिटिशियंस और लोगों को पसंद नहीं आती कह सकते हैं। तो उसके बाद एक फॉल्ट लाइन रही है माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स। जैसे कि मैंने बताया था कि 2011 की सेंसस में बताया गया था कि नॉर्थ इंडियन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, वही सदर्न इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो रही है। तो वहां पे जो अनस्किल्ड लेबरर्स है उनकी डिमांड ज्यादा है या फिर उनकी कमी है, और ये कमी को फील करता है नॉर्थ इंडिया। या ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2015 एंड 16 भी उसमें भी इंडिकेट किया गया था कि बहुत सारे वर्कर्स है जो नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में माइग्रेट करते हैं। तब अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इतनी ज्यादा संख्या में जब
वर्कर्स का माइग्रेशन होता है तो चांसेस होते हैं कि वो वहाँ की रीजनल डेमोग्राफी या फिर रीजनल कल्चर के साथ उनकी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल अगर हम मुंबई के बारे में बात करें जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स आते हैं जॉब के लिए या फिर काम के लिए, तो वहाँ पे देखते हैं कि जब उनका फर्क पड़ना शुरू हो जाता है वहाँ के डेमोग्राफी पे या फिर कल्चर पे, तो शिवसेना जैसी कुछ पार्टियां हैं वो सदर्न और नॉर्दर्न माइग्रेंट्स को टारगेट करते हुए हमें दिखती है। तो ये एक कहीं ना कहीं फॉल्ट लाइन है। उसके बाद डेवलपमेंट गैप एंड टैक्सेस की हम बात करेंगे। हाल ही में जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, तो मैं उस स्टेटमेंट को कोट करना चाहूंगा। Historically, the South has been subsidizing the North. 6 states south of the Vindhyas contribute more taxes and get less. For example, for every 1 rupees of tax contributed by Uttar Pradesh, that state receives rupees 1.79. For every 1 rupees tax contributed by Karnataka, the state receives rupees 4.47. While I recognize the need for correcting regional imbalance, where is the reward of development? तो ये जो साउथ के पॉलिटिशियंस है चाहे वो रूलिंग पार्टी के हो या फिर अपोजिशन पार्टी के हो, तो उनमें जो एक नाराजगी हमेशा से रही है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं उनको उतनी चीजें नहीं देती जितनी उनको देनी चाहिए। तो ये एक फॉल्ट लाइन हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। और उसके बाद इन फॉल्ट लाइन्स को हम किस तरीके से ब्रिज कर सकते हैं, यानी ये तो फॉल्ट लाइन्स जिसकी वजह से एक बहुत ज्यादा डिवाइड देखने को मिलता है। नॉर्दर्न्स लोग है कहीं ना कहीं, सदर्न जो लोग है कहीं ना कहीं ज्यादा अनहैप्पी दिखाई देते थोड़ा सा। तो इस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं, तो उसकी अगर हम बात करें तो पहले मैंने बात की थी कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो थ्योरी है उसमें एक ट्रुथ ऑफ एलिमेंट हो सकता है, लेकिन हम होल हार्टेडली उसे कंप्लीटली सच मान के डिवाइड करने वाली जो चीज है उसे बढ़ावा नहीं दे सकते। और द्रविड़ नाडु जैसे कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वो ज्यादा अब स्टैंड नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी सदर्न स्टेट्स में भी बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। अगर हम एग्जांपल बात करें तो कर्नाटका और केरला में कासरगोड नाम के रीजन पे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में कावेरी को लेके कावेरी के पानी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। तो ये जो आइडिया है ये बस पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जो अभी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। Then North India should be sensitive to the aspirations of the South and should not create cultural hegemony through unintended promotion of Hindi in non-Hindi states. तो मुझे लगता है कि जो काम प्यार से मोहब्बत से हो सकता है वो हम एग्रेसिवली या फिर कोई पॉलिसी फिर लॉ बना के अप्लाई नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो साउथ के स्टेट्स है वो हिंदी को कम्प्लीटली ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट करते हैं तो ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होना चाहिए, और अगर वो अपने दिल से इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं तो ही ज्यादा सही रहेगा, वरना हमें इसके अपोजिट रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एक एग्जाम्पल बता सकता हूँ कि जब मैं कर्नाटका में मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो मेरी मदर टंग जो थी वो मराठी थी, और मेरे जो कलीग्स थे या फिर मेरे जो क्लासमेट्स थे वो ज्यादातर कन्नड़ा मदर टंग थी उनकी और वो कन्नड़ा बात करते थे। और आपको अब लग रहा होगा कि ये लोग एक दूसरे से किस तरीके से कॉन्टैक्ट करते होंगे, उनके बीच में जो संपर्क भाषा है वो कौन सी रही होगी। तो कुछ लोग कहेंगे कि या तो उन्हें मराठी आती होगी, ये लोग मराठी में बात करते होंगे, या फिर मुझे कन्नड़ा आती होगी और मैं कन्नड़ा में बात करता रहूंगा। लेकिन वहाँ के लैंग्वेज और कल्चरल डिस्प्यूट्स की वजह से ना ही मैं कभी अच्छे से कन्नड़ा सीख पाया और ना ही वो लोग कभी अच्छे से मराठी सीख पाए, और हमारी संपर्क भाषा बनने का काम अगर कोई लैंग्वेज कर रही थी तो वो हिंदी कर रही थी। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि आजादी के 70 साल बाद भी ये सिचुएशन है कि बॉर्डर पे हो के भी दो कम्युनिटीज के लोग अपनी एक दूसरे की लैंग्वेजेस नहीं सीख पाए। तो हमें अवॉइड करना चाहिए फोर्सफुली इम्पोज करने की कोई भी चीज, और कोशिश करनी चाहिए कि चीज ऑटोमेटिक प्रोसेस हो और प्यार से हो तो अच्छी चीज है। और उसके बाद पॉलिटिकल लीडर शुड नॉट बी फिक्स्ड ऑन शॉर्ट टर्म गेन्स। पॉलिटिकल अपने गेन्स के लिए कोई कमेंट्स नॉर्थ एंड साउथ को खासकर लेके नहीं करने चाहिए पॉलिटिशियंस को। एंड इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी टीचेस अस दैट डिस्पाइट आवर differences in caste, religion or race, these differences cannot keep us apart and we must remain eternally united to better our country. और ऐसा नहीं रहा है कि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास कोई राजनीतिक या फिर सांस्कृतिक एकता नहीं रही है।
अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मौर्य एम्पायर हमारे पास रहा है, गुप्ता एम्पायर की हम बात करें तो ऐसे बहुत सारे एम्पायर्स रहे हैं। चोला एम्पायर रहा है, मुगल एम्पायर रहा है, मराठा एम्पायर रहा है। तो इन्होंने कभी नॉर्थ और साउथ इंडिया को अलग अलग तरीके से रूल नहीं किया है। उन्होंने कोशिश की है कि इन सारे रीजन्स को एज अ वन ज्योग्राफिकल एंटिटी ही रूल करे। और इसके बाद अगर हम ब्रिटिश के टाइम पीरियड की बात करें तो कहीं ना कहीं ये एक विरोधाभास हमें देखने को मिलता है। हालांकि एक ज्योग्राफिकल एंटिटी के रूप में उन्होंने हमें रूल किया है, लेकिन डिवाइड करके। उनकी जो एक फेमस पॉलिसी थी ब्रिटिशों की, डिवाइड एंड रूल। दिस पॉलिसी वाज यूज्ड टू कीप द इंडियंस डिवाइडेड so that they would be easier to control. The British used this policy to create divisions among the different religious groups, caste and ethnicities. They also used this to put different regions against each other. और उनका ऐसा था कि वो उन्हीं रीजन्स को डेवलप ज्यादा करते थे जिनसे उन्हें लगता था कि ज्यादा फायदा होने वाला है। खासकर अगर मैं सदर्न इंडिया की बात करूं, जो पोर्ट्स उनके लिए ट्रेड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो वहां पे उन्हें डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने मतलब वहां पे काम किया, जिसकी वजह से जो बाकी के रीजन्स थे वहां पे अनरेस्ट और जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर कल्चरल रिलेशंस की बात करें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में, तो बहुत ही पुरानी बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है साउथ एंड नॉर्थ के बीच में। और ऐसा नहीं है कि साउथ और नॉर्थ को कभी अलग अलग तरीके से हमारे कल्चर में देखा गया हो। एक कंप्लीट कल्चरल मतलब एक कंप्लीट एरिया के रूप में ही देखा गया है। एग्जाम्पल हम विष्णु पुराण में देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पे हमारे देश भारत का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नमो भारती यत्र संतति। अर्थात उत्तर से हिमालय पर्वत से लेके दक्षिण के हिंद महासागर तक जो पूरा रीजन है उसे भारत कहते हैं। और उत्तर में जो हिमालय पर्वत है उसके दक्षिण में जो लोग रहते हैं वो भारत के वंशज है। और ऐसा नहीं है कि जो नॉर्थ के प्राचीन ग्रंथ है उसमें ही इसका उल्लेख हमें देखने को मिलता है और एक ज्योग्राफिकल एंटिटी बताया गया हो भारत को। कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, ऐसे बहुत सारे प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भारत का डिस्क्रिप्शन एज अ वन ज्योग्राफिकल एंटिटी हमें दिखाई देता है। और संगम लिटरेचर की अगर हम बात करें, जो कि संस्कृत का एक बहुत पुराना लिटरेचर रहा है, उसमें भी संस्कृत और संगम तमिल के बीच, संगम लिटरेचर के बीच में भी एक रिलेशन हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे संस्कृत के बहुत सारे वर्ड्स का इन्फ्लुएंस हमें संगम लिटरेचर को ऊपर देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आचार्य करके एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है रिलीजियस टीचर या फिर गुरु या फिर मार्गदर्शक। ये वर्ड हमें संगम लिटरेचर में भी देखने को मिलता है। So the most significant contribution of the Sangam literature to the religious and cultural development of India is that it played important role for emotional integration of the Indian people। और ये हमें संगम लिटरेचर से ही पता चलता है कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं, तमिलियंस हैं, वो भी हमारे देश भारत को एक कॉमन मातृभाषा के रूप में ही देखते थे। उसके बाद अगर हम बात करें पांड्यास किंगडम की, तो वहां पे किंग पराक्रमा पांड्या नाम से एक बहुत ही फेमस किंग थे, हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड मदुरई इन 15th सेंचुरी। वो चाहते थे कि दक्षिण में भी एक मंदिर बनाया जाए भगवान शिव का, और इसके लिए उन्होंने ट्रैवल किया था नॉर्थ में, उत्तर प्रदेश में काशी में उन्होंने ट्रैवल किया था ताकि वहां से एक शिवलिंग को लेके आ जाए और साउथ में उसको इस्टेब्लिश कर सके ताकि वहां के लोग इजीली वहां पे प्रे कर सके। तो वहां पे एक फेमस स्टोरी भी मानी जाती है कि जब वो शिवलिंग लाने के लिए गए थे तो एक गाय के ऊपर शिवलिंग रख के वो वापस साउथ इंडिया की तरफ ट्रैवल कर रहे थे। फिर रास्ते में उन्होंने रेस्ट लेने के लिए वहां पे थोड़ी सी मतलब उन्होंने रेस्ट की, लेकिन जब उन्होंने वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करने की कोशिश की तब जो गाय है वो रिफ्यूज करती है उस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए। फिर जो किंग पराक्रमा पांड्या है उन्होंने सोचा कि भगवान शिव की यही इच्छा है और वहीं पे उस लिंगम को स्थापित कर दिया गया। और पांड्याज ने बाद में जाके एक बहुत ही बड़ा टेम्पल वहां पे बनाया जिसे हम विश्वनाथ टेम्पल के नाम से जानते हैं, जो कि आज टेंकसी इन साउथ वेस्टर्न तमिलनाडु में स्थित है, केरला के बॉर्डर के पास। उसके बाद अशोका की इंस्क्रिप्शन 33 इंस्क्रिप्शन का कलेक्शन है हमारे पास, जिन्हें एडिक्ट्स के नाम से भी जानते हैं क्योंकि वो पत्थरों पे लिखे गए हैं। इनमें से बहुत सारे एडिक्ट्स ऐसे हैं जो साउथ इंडिया में भी हमें देखने को मिलते हैं।
तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है किस तरीके से अशोका जो है उनका इन्फ्लुएंस नॉर्थ और साउथ दोनों रीजन्स पे रहा है। उसके बाद हम पल्लवा किंगडम की बात करें जो एक सदर्न किंगडम रही है, वहां पे भी हमें तमिल के साथ साथ प्राकृत और संस्कृत लैंग्वेज का भी यूज देखने को मिलता है। वहां पे तो उन्होंने एक सेपरेट स्क्रिप्ट भी बनाई थी अपनी, जो कि तमिल और ब्राह्मी से मिलके बनी थी। यहाँ पे तमिल का रिलेशन साउथ इंडिया से है और ब्राह्मी का रिलेशन नॉर्थ इंडिया से है। तो यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है जहाँ पे एक तरफ जो पल्लवा स्क्रिप्ट है उसमें इंस्क्रिप्शन लिखी गई है और दूसरी तरफ नागरी स्क्रिप्ट में लिखी गई है, और ये नागरी स्क्रिप्ट वही है जो नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है। और यही नहीं बल्कि बहुत सारे रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल कनेक्शंस भी हमें नॉर्थ और साउथ इंडिया में देखने को मिलते हैं। वैदिक प्रैक्टिसेस की भी अगर हम बात करें तो माना जाता है कि जब नॉर्थ इंडिया में जो वेद यज्ञ करने की प्रैक्टिसेस है वो जब लुप्त हो रही थी या फिर जो कम हो रही थी, तब वो हमें साउथ इंडिया में भी कुछ किंग्स थे तब यज्ञास को वो प्रैक्टिस कर रहे थे, जो हमें दिखाता है कि किस तरीके से जो हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक फिलॉसफी रही है उसमें एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमें दिखाई देता है। और हम जब नॉर्थ और साउथ इंडिया को कनेक्ट करने की बात करती है तो आदि शंकराचार्य के भी नाम बहुत ही आगे बढ़ चलकर आता है। वो भी बहुत ही फेमस फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को कनेक्ट करने का काम किया है। उसके बाद अगर हम बात करें कि करेंटली हमारी गवर्नमेंट क्या कोशिश कर रही है या फिर क्या काम कर रही है कि इस डाइवर्स नेशन को एक साथ ला सके और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को एक साथ ला सके। So Prime Minister of India inaugurated the month-long Kashi Tamil Sangamam in Varanasi, Uttar Pradesh, to uphold the spirit of एक भारत and श्रेष्ठ भारत। और उसके बाद सिर्फ तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश काशी के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स के लिए भी ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए गए जिसके थ्रू वो अपने अपनी लैंग्वेज अपने अपने एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड कर सके, उनको जान सके और अपनी जो हिस्टोरिकल और सिविलाइजेशनल जो कनेक्शन है उसको सेलिब्रेट कर सके। और फिर इंडियन गवर्नमेंट की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने भी एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम भाषा संगम ऐप जिसका नाम है। ये ऐप आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, नई इंडियन लैंग्वेज सीखनी है तो उसे डाउनलोड करके आप सीख सकते हो। उसके बाद बहुत सारे इनिशिएटिव्स और बहुत सारे आइडियाज भी आजकल चर्चा में आ रहे हैं, जैसे कि वन आधार, वन नेशन वन आधार, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात चल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं वो हमें सोशली और पॉलिटिकली यूनाइट करने का काम कर रही है। और जब हम साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट करने की बात करते हैं तो इंडियन सिनेमा का नाम हम ना ले ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंडियन सिनेमा का इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हमें देखने को मिलता है। थ्रू इट्स इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग टेक्निक्स, इम्पैक्टफुल डायलॉग एंड रिजोनेंट सॉन्ग्स, इंडियन सिनेमा हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू शेपिंग द नेशंस आइडेंटिटी एंड फोस्टरिंग अ सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म अमंग इट्स सिटीजन्स। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साउथ में नहीं जा पाते, लेकिन साउथ की फिल्म्स की वजह से वो वहाँ के कल्चर को जान पाता है। और सिमिलरली ऐसे ही होता है कि साउथ के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉर्थ में ट्रैवल नहीं कर पाते, वहां पे जा नहीं पाते, लेकिन मूवीज के थ्रू वो जान पाते हैं कि वहां का कल्चर किस तरीके का है। तो एग्जाम्पल अभी एक रिसेंटली मूवी अभी आई थी जिसका नाम है एनिमल। हालांकि वो मूवी अच्छी थी बुरी थी वो बात अलग है, लेकिन उसमें एक चीज देखने जैसी थी कि उसमें जो मेल एक्टर थे वो थे रणबीर कपूर, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और जो एक्ट्रेस थी वो थी रश्मिका मंदाना, जो कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही थी। और वो एक ही फिल्म में काम कर रहे थे, और उस मूवी में जो फैमिली का रोल वो निभा रहे थे उसमें एक पंजाबी फैमिली का रोल हमें देखने को मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं इंडियन सिनेमा जो है वो हमारी डाइवर्स नेचर को कंट्री के दिखाने की कोशिश करता है, सबको एक लाने की कोशिश करता है। इसके साथ ही जब RRR मूवी आई थी उसका एक नाटू नाटू सॉन्ग है, उसको ऑस्कर अवार्ड मिला था। तो ऐसा नहीं है कि उस ऑस्कर को सिर्फ साउथ इंडस्ट्री ने सेलिब्रेट किया हो, इस ऑस्कर को पूरे इंडियन सिनेमा ने, पूरे देश ने सेलिब्रेट किया था। और इंडियन सिनेमा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसमें नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को जोड़ने में। और ऐसे ही एफर्ट शुड बी मेड टू प्रमोट द म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, encouraging the collaboration and shared progress.
And exploring the North India versus South India debate is like containing about the diverse culture, languages, cuisines, and tradition. So let's celebrate the richness of both regions, fostering unity in our beautiful diverse nation. और एंड में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हम भारत जैसे एक डाइवर्स विविधतापूर्ण देश में रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि शायद ही ऐसा कोई देश होगा जिसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। इसीलिए एज एन इंडियन लाइफ में अगर आपको कभी मौका मिले कि अपनी मदर टंग के अलावा और इंग्लिश के अलावा अगर कोई और इंडियन लैंग्वेज आपको सीखने को मिलती है, या फिर किसी और कल्चर के बारे में आपको कुछ जानने का मौका मिलता है, तो आप सबको जरूर जानना चाहिए और अपनी जो डाइवर्सिटी है उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Manthan. And you are the newest addition in our GSTS family also. So your topic totally resonates with the festivals we are celebrating. That is Makar Sankranti, Pongal, Makar Vilakku, and Mag Bihu, all on the same day. It shows the amalgamation of cultures. And I wish happiness and abundance to everyone present here. Today, as we have completed 150th talk, I'm grateful and overwhelmed with the response which people has showered upon us. This is our contribution for creating an impact in the society. Recently, I watched 12th Fail, and one quote that I found relatable was, "If I cannot be the sun that shines upon the earth, I can still be a lamp and light up my street." That's what the platform has done. So, moving forward to our next segment, I would like to thank our guest of honors for supporting us throughout. For that, I would be inviting some of our guest teachers. Firstly, I would like to invite Tapan sir. Sir, please give us your valuable remarks about the talk also and about our platform. Sir, are you there? Tapan sir, are you there? Sir? I think sir is here, but go ahead next. Okay, now I would like to invite Neha ma'am. Okay, so now moving forward, you would be inviting Pankajendra sir for his remarks about the initiative. Sir, are you there? Okay. Ranjan is here, Dr. Ranjan. Okay, so Ranjan sir, please give us your insights. Thank you so much sir, that you invited me in this wonderful talk. Manthan, wonderful talk there. You almost added each and every aspect which is supposed to be added in a topic like this. You talked about all the aspects, and I congratulate you for the wonderful presentation that you have made. I was wondering that you are going to skip something, and then if I'll be given this chance to speak on this, then I will put something as an effort which will be helpful to you. But I doubt that you have missed anything. So again, I would like to congratulate you for covering all the aspects which are supposed to be there. Manish sir, on this platform, again, I would like to congratulate you for the 150 number that you guys have achieved. And I was there in the beginning of it. I was there in 119th episode, I feel. And fortunately, I'm here on the 150th episode of the wonderful academic activity that you are running. And I wish that you guys keep the sky as the limit quote with you, that you will be working on this. And I have 23 years of service left in my career, and I hope that I'll be there in each and every activity which will come up in front of me in these 23 years. Thank you so much for the invitation, sir. And Manthan and Samriddhi, you really managed things well, because you were there on the day of discussion when I was there. And I wonder, today I heard that you are from English honor, you are in doing a master's from the department. And I feel that the entire beginning and the entire process of development has given a lot to the students who are from
Shamlal, and it has really taken up the morals of the students over there. Pramod sir, thank you so much for the wonderful initiative. आपने बहुत बेहतर तरीके से इन चीजों की शुरुआत करी है और आप पिलर की तरह साथ में खड़े हैं। मनी सर से मैं क्रेडिट कहीं शिफ्ट नहीं करना चाहता, लेकिन आप बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इस पूरे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सो मच सर। Okay. And Ranjan, now pillar shift from Samriddhi to Manvi. Right now, Manvi has invited you. So, and the voice are a little bit same. So maybe you little bit confused. The first part because what we try to do, each and every moderator will speak right now. So Manvi is the Manvi has. Congratulations, Manvi. I'm really sorry that I missed your name, and because the screen is too small to me, no. So I was also wondering that where I should go. I kept on writing the names who were speaking. So Manthan is loud and clear, so I could identify, but I got confused in between Samriddhi and Manvi. Congratulations. No issues. Thank you so much, sir. We are very much obliged that you have attended the program today. So moving forward, I would next like to invite Mala ma'am for her remarks. Mala ma'am, are you there? Okay, there must be some issues. Next, I would like to invite Neeraj sir. They all are here. They all were here, but I think right now I'm not seeing also so no issues. Invite students. We have invited so many students right now. So over to them. Okay, sir, Pankaj sir is here. Sir, would you like to say something about the initiative? Pankajendra sir. Okay, so let's just move forward to the next segment. So, and now, it's time to call some of our eminent speakers. We couldn't मनीष have सर, done it. Yes, मैं ma'am. बोल रही हाँ, मैं धर्मा रावत मनीष सर। हाँ, yes, Good ma'am. evening, ma'am. सॉरी, मैं अपने से आ गई। नहीं, अच्छी बात है मैम। अरे नहीं, माफी का स्क्रीन भी काफी छोटा है, तो सबसे उसको भी पहले तो सभी वरिष्ठ जनों को मेरा नमस्कार। प्रमोद सर नमस्ते। और मुझे मंथन को मैं भी सुन रही थी। पहले तो मैं देरी से जुड़ने के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन मंथन को सुनते समय मुझे एक चीज याद आई कि मंथन फर्स्ट ईयर में आया था और ये मेरे पास आके बोलते हैं, मैम मैं आपको कुछ लिख कर दूं तो आप एक बार चेक करेंगी क्या मैं हिंदी ठीक से लिख रहा हूँ, मैं मतलब हिंदी ऑनर्स पढ़ पाऊंगा? तो मैंने कहा हाँ लिख कर दो। और मनीष सर मैं सच बताऊं, इसने इतना अच्छा लिखा था और मैंने इसे कहा कि तुम यहीं रहना भाई, जाना मत कहीं इधर उधर। तो ये बहुत अच्छा किया था। और आज जब मैं इन बच्चों को सुनती हूँ, इन्हें देखती हूँ, सच में मतलब बहुत अच्छा लगता है सर। और धर्मा जी, आप कभी भी, ये आपका ही कॉलेज है, आप सत्यवती इवनिंग में चली गई हैं, बट आपको कभी इनविटेशन नहीं जाएगा, आप खुद ही आ सकती हैं जब भी आपकी इच्छा हो। इसीलिए मैं आ गई सर। इसीलिए मैंने कहा कि मैं बोलना चाहती हूँ। मोस्ट वेलकम। हाँ सर, तो मतलब ये जो हमारी बगिया के फूल थे सर, ये हमें लगता है कि बहुत आगे तक जाएंगे और इनकी खुशबू बहुत दूर तक जाएगी। ये बहुत आगे बढ़े इसी उसके आशा के साथ। और मनीष सर आपको बहुत बहुत बधाई, प्रमोद सर को बधाई और श्यामलाल इवनिंग को बधाई कि 150 कोरोना के दौरान जो शुरू हुआ था सर, वो यात्रा एक लंबी यात्रा रहे और हम भी इसके साक्षी बने रहें, इसके साथ रहें हमेशा। मैं जुड़ नहीं पाती हूँ कई बार, उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन हमेशा इसके साथ हूँ, दिल से साथ हूँ। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your blessings. And now it's time to call some of our eminent speakers. We couldn't have done it without you all. They are connected to us from the start, from GSTS 1. मनीष सर, मैं भी कुछ बोलना चाहता हूँ यदि जी सर, परमिशन हो। आपको पहले ही बुलाया गया था, आपने सुना नहीं, जब तक सर वाईफाई में दिक्कत आई, जब तक कनेक्ट हुआ तब तक नाम वो अनाउंस हुआ और मैं जुड़ने ही वाला था, तब तक फिर कॉल दूसरे को हो गई, तो मैंने कहा मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले तो मनीष सर, आपको मैं क्या कहूँ कि
जब से मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ और जब से मैं इस कार्यक्रम को जानना और समझने लगा हूँ, तब से तो मैं आपका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। और मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ, इस कार्यक्रम से बहुत सीखा है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं हर इस एपिसोड में, इस कार्यक्रम में जुड़ूँ, लगभग जुड़ता हूँ, कोशिश रहती है, बहुत व्यस्तता हुई तो मैं आपसे माफ़ी माँगते हुए मैं अलग होता हूँ। अ, मुझे लगता है कि ये मैं बार-बार लिखता भी हूँ कि ये आयोजन हम जब भविष्य में इस आयोजन को याद करेंगे, एक ऐतिहासिक आयोजन होगा और मुझे नहीं लगता कि जब भी मैं साहित्यिक कार्यक्रमों से जुड़ा रहा हूँ और मुझे अच्छा लगता है जुड़ना और मैंने इतने लगातार जैसे प्रमोद सर भी बोल रहे थे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये इतना लंबा आयोजन होगा। लंबा जाएगा। मुझे लगता है इतना लंबा नहीं, मुझे लग रहा है कि हम जब तक हैं और हम लोग जुड़े हैं, मुझे लगता है ये इतना लंबा कारवां इतना लंबा जाएगा कि ये मनीष सर की क्या कहते हैं कि अ सैल्यूट है पूरी टीम को मनीष सर के साथ कि आप हम लोग जब भी कोई काम करते हैं, जब बहुत लगन से, बहुत शिद्दत से, बहुत ईमानदारी के साथ करते हैं, तो ऐसे ही कार्यक्रम बनते हैं और ऐसे ही कार्यक्रम का कारवां आगे बढ़ता है। तो पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई, मंथन को बहुत-बहुत बधाई। मंथन तो हमारे प्रिय स्टूडेंट हैं। समृद्धि जुड़ी है, इन लोगों को पढ़ाया है, तो बहुत अच्छा लगता है सबको देखते हुए। बहुत-बहुत बधाई। सबको बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद सर। Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. We are very much grateful. So now let's start with the speakers. मैं सबसे पहले तरुण मिश्रा को बुलाना चाहूंगी। वह एक ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के संस्थापक और एक बेहतरीन कवि हैं। तरुण, the stage is over to you. Thank you, Manvi, so much. I hope I'm audible. Yes, you are. If I reflect on my experience at GSTS, it has always been an exciting and yet not so easy moment when you are amongst best speakers and thinkers, as I would like to call. You are under this goosebump syndrome all the time, and it is very helpful for any individual longing for expressing his or her ideas. And for I'm a poet, so metaphors do really matter to me. And GSTS has indeed set itself as a metaphor for consistency, efficiency, and brilliance. The sheer hard work they showcase at every instance is just very uncanny and not found then and now. I must say that GSTS is going to be remembered till dozen posterities and beyond. Thank you so much for being so kind on me and providing a proper stage for the expression. And I cannot withhold myself from reciting these lines I had written a few months back. That शहर में शाम होगी तो हम भोर आएंगे, आएंगे जब भी तो उसी ओर आएंगे, और कांटों के बाग होंगे और आग के दरिए, नाव नहीं होगी तो दरख्त तोड़ आएंगे. तो हर बार दरख्त तोड़ कर आए या नाव से आए, GSTS हमेशा कंसिस्टेंट रहता है. सो आई विश द एंटायर टीम मेनी मोर इयर्स एंड अचीवमेंट्स. थैंक यू सो मच. Thank you so much, Tarun. Seriously, thank you so much. You have made us all emotional today. And then, so moving forward, next, I would like to call Mr. Padmanabh Reddy, an author, a debater, and somebody who is fluent in various languages, including Hindi, English, Sanskrit, Telugu, Tamil, and whatnot. Padmanabh, please present your views about the platform. Thank you, Manvi. Thank you for such a wonderful introduction. So I started getting along with GSTS, I think in talk 35, 36, I guess. When I was in my second year, it was 2020 in the lockdown times. I was a speaker here for 2 times, and then the third time that I spoke in this platform was GSTS 100, where I stood as a second best speaker. I'm very thankful for GSTs. I didn't know that there existed a platform where students can come up, put up their original research, share their ideas. And Manish sir, I have been a fan of him from like the day that I met him online. I remember it was a pre-presentation time, the pre-presentation time, and I didn't know that somebody could give such good insights to my talk, what I was going to give. And the amount of criticism, the amount of constructive criticism that I got from GSTS is wonderful. Not just Manish sir, also all the people that are associated with GSTS. They have given me such good constructive criticism that I could only improve upon myself, and I got really good friends from here as well. So everybody who is listening today,
Maybe one of you might be a future speaker over here. Yeah, thank you, sir. That's my book. Thank you. So maybe one of you would be a future speaker over here. So for them, I would suggest, do good research, read and read. That's the only way that you can, get on information. Read, research, do your things, present, share your knowledge only, and also seek criticism. Don't take those people seriously who are giving very positive criticism. No, not at all. Only take those people seriously who are giving negative criticism. Only then you can, improve upon yourself. So thank you. That's all from my side. Thank you so much, Padmanabh. And we would be waiting for your third book to release soon. Okay. So now I would like to welcome Ms. Shruti. She was junior under officer under NCC and one of our very calm and composed speaker. Ms. Shruti, please present your views. Thank you, Manvi, for calling me here. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक कबीर के दोहे को आज याद कर रही हूँ कि करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान. एंड देयर इज नो डाउट दैट वो एक स्पॉट, बहुत ही बढ़िया स्पॉट श्यामलाल कॉलेज इवनिंग में GSTS ने बनाया है पूरी सोसाइटी में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म दे करके. आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला और एक बार नहीं बहुत बार मिला. First of all, a big congratulations to all the GSTS moderators and especially Manish sir. Heartiest congratulations to you sir. और मेरी दिली तमन्ना है कि मैं फिर मिलूं, हम सब फिर इकट्ठे हों और ये जर्नी आगे तक जाए. It goes on to the infinity. ऐसे ही कारवां चलता रहे और लोग जुड़ते रहे. वेरी सॉरी कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाती हूँ, बट जैसे मैम ने कहा मैं दिल से हमेशा कनेक्ट रहती हूँ और जब भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टीम की जरूरत है और अगर टीम को मेरी जरूरत है, आई विल बी देयर ऑलवेज एंड ऑलवेज. एंड दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ GSTS कि वो अब कभी भी अपने स्पीकर्स को भूलते नहीं है, ना हम उन्हें भूलते हैं ना वो हमें भूलने देते हैं कि GSTS से हम जुड़े थे. द ओनली सजेशन दैट आई वांट टू गिव इज कि जो भी स्पीकर्स आते हैं आफ्टर द सेशन दे शुड गेट सम प्रेफरेंसेस. एंड सेकेंड थिंग, द गेस्ट ऑफ ऑनर्स, कुछ ऐसे गेस्ट ऑफ ऑनर्स होने चाहिए द वन हु आर मोस्ट रिलेवेंट टू द टॉपिक एंड दे कुड ब्रिंग सम चेंज इन द सोसाइटी. क्योंकि यहाँ पे इतने यंग माइंड्स आते हैं, इतने इंटरेक्टिव आइडियाज आते हैं, इतने क्रिएटिव आइडियाज आते हैं दैट कुड ब्रिंग सो मेनी पॉजिटिव चेंजेस इन द सोसाइटी. सो देयर शुड बी, देयर मे बी, it's on the moderators and it's on the team कि वो कुछ ऐसे guest of honors लेके आए that could bring the change and that could implement the change in the society. And once again, big congratulations to the whole team, and you could achieve the success, many more successes and many more episodes in this. And I wish कि I could witness each and every success with this smiling faces. Thank you so much. Thank you so much, Ms. Shruti. And we are surely हम आपके suggestions पर ध्यान देंगे. Thank you for your valuable remarks. Next is the person who has a very good focus on foreign relations and policies and has been very consistent in supporting us, Mr. Sanskar Sehoria. Now I would like to invite you to present your remarks about the platform. Thank you, Ms. Manvi. First of all, congratulations to all of you and especially Manish sir on this beautiful journey. Because you see, it's not an easy task to carry on such a big platform for 150 consecutive Sundays. But you all pulled it off, so that's indeed a very big achievement. So kudos to all the team members. You see, since initial days, only I found this platform full of knowledge and analysis. And such things really help students, and I'm lucky enough to got the opportunity to be on this platforms. I remember one incident that few months back, I remember I was asking Manvi whether I could give another talk on GSTS, but she completely denied me and said, even we haven't given 3 talks and you want to go. So you see, such is the case with this platform, that they have so many students from various parts of the country that it's next to impossible to get another opportunity. So that's remarkable. And thank you so much, everyone. I wish you all the very best for future and hope that GSTS carry on the legacy that they have made. Thank you, Manish sir. One more incident, sir.
Before this, when the talk was going on of Manthan, he gave a brilliant talk. Congratulations, Manthan. I remember I was talking to Tarun behind the scene, and he was saying कि हम लोगों को मनीष सर का नाम नोबेल प्राइज के लिए वो नॉमिनेट करना चाहिए. So हम लोग कह रहे थे कि इतना अच्छा आपने काम करा, इतना अच्छा आपका प्लेटफॉर्म चला है. So yeah, आपकी ऐसी लेगेसी है सर. Thank you so much. तरुण आई डू एग्री संस्कार, आई डू एग्री, हमें जरूर सर का नाम आगे करना चाहिए. नहीं सुनिए. सो अभी तक स्पीकर्स बोलने वाले अधिक होते हैं, सुनने वाले कम होते हैं. मैं तो लास्ट में बोलता. सो दिस इज बिट डिसअपॉइंटिंग, डिसअपॉइंटेड मी इटसेल्फ. वो तो छोड़ो, ना तो कॉलेज ना तो यूनिवर्सिटी, वो नोबेल प्राइज की तो बात छोड़ो. यू सी फ्रॉम माय कॉलेज, माय फॉर्मल कॉलेज, I don't see hardly 4 or 5 teachers. Though this is one of the best days in the whole GSTS journey, 150th, and we are not doing for ourselves. We are doing for the college and university. So definitely we are having many speakers, but audience, we are little bit worried about this thing. Sorry. So don't recommend my name to the college and university. That's all. So definitely, sir, definitely. Thank you, Sanskar, for this emotion. Manvi, over to you. Thank you so much, Sanskar. And surely you can give third talk whenever you want. And so next I would like to call Mr. Raj. He has given 2 talks and he has very good understanding and knowledge of history and colonialism. Mr. Raj, would you like to give some suggestions about our platform? सर, राज, मैं या फिर कोई और? नहीं, आप ही. अच्छा. सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई ये 150th टॉक के लिए. और आज मंथन बहुत अच्छा बोला नॉर्थ साउथ के बारे में. पूरे टॉक में सर 1-2 बात मतलब जो अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे, और टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स दोनों, तो कई मतलब एक बार सुनने में आया था कि उन लोग के समय में, टीचर्स के समय में भी प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करता था बोलने के लिए. तो मेरे मन में लगता था कि बोलना क्या है, कोई भी तो बोल ही सकता है, ठीक है, ऐसे करके आगे बोलना. पर ये बोलना टीचर्स का ये बोलना कि हमारे टाइम होता ही नहीं था कोई प्लेटफॉर्म, पर अभी है. एक बात तो ये. और दूसरी बात हम जो ये बोल रहा था मैं कि कोई बोलने का तो क्या है, कोई भी बोल सकता है. तो इस हिसाब से सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से कि हमें ज्यादा उनको भी चांस देना चाहिए, जो मतलब जो बोल सकते हैं उनको तो देना ही है चांस, पर जो बहुत कमजोर है उनको ज्यादा फोकस किया जाए. क्योंकि मतलब यही फोकस नहीं होना चाहिए कि भाई जो अच्छा है उसको और अच्छा करें, जो नहीं ज्यादा बोल पाता है वो भी अपना स्किल थोड़ा ठीक कर पाए, ऐसे करके ये करके तो ज्यादा पर्पस सॉल्व मतलब इसका फुलफिल होगा. और बाकी तो बहुत बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा है इसका. और इस परिवार का मैं थोड़ा सा नटखट सदस्य रहा हूँ, तो उसके लिए तो मैं मनीष सर से डायरेक्ट माफी मांगता हूँ. और बाकी बहुत बहुत बधाई सर. अभी तो 150th के लिए आ गई है, 200 भी होगा और आगे सेलिब्रेशंस फिर ऐसे ही होंगे. और मैं तो अभी पिछले कुछ समय से मतलब बीच में ऐसा नहीं था कि आना नहीं चाहता था, डिसकंटिन्यू हो गया था, पर अभी कुछ समय से मैं शायद पिछले 7-8 टॉक से लगातार ज्वाइन कर रहा हूँ, तो अभी चलेगा ऐसे ही. फिर से सर बहुत बहुत बधाई, आज बहुत खुशी का दिन है. Thank you so much, Mr. Raj. Thank you so much, everyone, and to all the speakers that have been a part of us. Thank you so much. To me personally, working. Manvi, yes, sir. Take your 10 more seconds because I want to invite 1 or 2 students or more. That means one is वो हमारे कॉलेज में है आजकल, उसको कविता सुनते हुए मैं देखता हूँ, मिस्टर सिंह यादव, सिद्धार्थ सिंह यादव. And second, because now I'm in Department of African Studies, and every time Department of African Studies has given us a urgent speakers like भाई जब जरूरत होती है तो हम थोड़ा अधिक अपने स्कॉलर्स पे, PhD स्कॉलर्स पे थोड़ा अधिक कंट्रोल होता है डिस्पाइट की अंडरग्रेड स्टूडेंट से. सो मैं मिस्टर सिंह यादव, सिद्धार्थ सिंह यादव. यस सर. आजकल सुन रहे हैं कि तुम कविता कर रहे हो, तो एक कविता यहाँ भी सुना दो. के बाद फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ अफ्रीकन स्टडीज आई विल कॉल
Anushka and Chandan. That's all. Yeah, Siddharth. Sir, thank you, sir. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू जीएसटीएस। ये बहुत अच्छी जर्नी रही है, मैं भी पार्ट रहा हूँ इसका, अभी भी हूँ। और सर बोले हैं तो कुछ सुनाता हूँ। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जैसे समृद्धि दीदी होस्ट कर रही थी, मानवी दी बोल रही हैं, तो कुछ लड़कियों के लिए ही लिखा था। एक शायरी है छोटी सी, सुना देता हूँ कि बेटा हो, बाप हो, पति हो या प्रेमी हो, बेटा हो, बाप हो, पति हो या प्रेमी हो, वो सबको प्यार देती हैं। लड़कियां रिश्तों में अपना सब कुछ हार देती हैं। बेटा हो, बाप हो, पति हो या प्रेमी हो, वो सबको प्यार देती हैं। लड़कियां रिश्तों में अपना सब कुछ हार देती हैं। और वो पापा की परियां जो कल तक कॉकरोच से भी बहुत डरती थी, वो पापा की परियां जो कल तक कॉकरोच से भी बहुत डरती थी, अजीज अपनों और बच्चों के लिए आज वो सांप भी मार देती हैं। थैंक यू। And Anant is also here. So over to you, Anant. Anant. Thank you so much, sir, for inviting me, and it's an honor for me to say thank you to whole GS team and the family. And I've been associated with GSTS from very beginning, and I was there in speaker list, and also it it's being a roller coaster journey for me in terms of the research that we can see here, and the different perspective the speakers came with, and the kind of engagement in Q&A that we can see with between the audience and the speaker. And I like to congratulate all, and I want uh, all of us to participate more and more and come forward and share their own perspectives and their own ideas and their own vision, how they see things. And yeah, it's great to see us that we are completing 150th milestone, and yeah, we are going way more forward. Thank you so much. Yes, Anushka, because that department of mine is like a savior to GSTS few occasions. So over to you, Anushka, for quick remarks, and after that, Chandan, and after that, Manvi. Good afternoon, sir. Sorry for the noise. I am actually outside right now, but yeah, I listened to the whole talk. And Manthan, you were really great. I really like the simplicity in which you have explained everything. And honestly speaking, this GSTS platform has been the best of every week. Right, every Sunday we come 5 to 6 and listen to the most creative and informative sessions. And thank you, Manish sir, and I really congratulate the whole GSTS team for being so consistent, hardworking, and making sure that each and every one of us build confidence inside us. Right, and the creative minds we get to hear every week is just very nice. I really appreciate it, and I got the chance to speak on this platform once. I was very honored. So I really congratulate the whole team. I wish you all the success and many more talks to come in future. Thank you. One more thing, one of my good students, Mandira. Good evening, sir. Good evening, everyone. Congratulations to our platform, which is 150 now. And for me, I have been like privileged from the very beginning. When Sakshi, I have like from the first year itself, and when the initiative started, and every time, I enjoyed this a lot through my whole college life. And I learned a lot from this platform, and which is going to be like the star for my whole life. Even in upcoming days, it will be always the best part of my life. And congratulations to Manthan and being in this platform. The privilege is to get to know more and more people about too much. Thank you so much. Thank you so much. And congratulations. Yes, she is secret angel to us. She's behind the curtain and she's working very hard. So there's so many students. First, last Chandan, give us quick remarks if you are here. If not, Manvi, over to you and you conduct the session.
Okay, sure, sir. So, to me personally, working as one of the moderators from GSTS 1 to GSTS 150 today, it has been a cherishing experience. The stage was all about consistency, coming up non-stop each Sunday with a hardcore preparation, and there were times it was really hard, but we managed it somehow because we believe in the philosophy that the show must go on. वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमान से. So, we all, I think, have a personal attachment that has become a part of us now. We are soon to complete 3 years, and the time has passed within wink of an eye. There were many people who stood by us in this journey, and we'll always be indebted to each one of them. I would like to take some of the names, be it Mudit Bharadwaj, Vishesh Kasmi, Archana Bharti, Shubhi Singh, Ashish Raj, Ayush Raj, Mandira Paul, Sachin Kushwaha, and many more. So, thank you to each one of you. So, moving forward, now I would like to invite the next speaker, who is a speaker for next week, Mr. Shams. Shams, please present a brief about your objectives. Am I audible and visible, Manvi? Yes, you are. Okay, thank you so much, Manvi, for this invitation. And I'll fail in my duty if I'll not put on record a note of gratitude for the entire organization, especially Manish sir, about whom I've heard a lot today. Thank you so much, sir, for this initiative. Now, I would take this moment as a moment of honor, rather privilege, me being the 151st speaker of this Graduate Scholar Talk series. While listening to the previous presentation, we were talking about North to South, but in the 151st talk of the Graduate Scholars Talk series, we'll be talking about the difference between the East to the West. I am Muhammad Shamsuddauha Khan, the Joint Secretary of Royal Literary Society, housed in the Department of English of Aligarh Muslim University. The title of the 151st talk of the Graduate Scholar Talk series happens to be Palette of Perspectives, Colors of India on Colonial Canvas. The talk focuses on two very evident phrases used in the title itself. That is the palette of perspectives and Indian colors on colonial canvas. To generalize, one could arrive at an art class where, palette, art, and canvas shine. But I would like to sketch something else. My talk engages us on the literary perspectives held by select colonial writers on the Raj, or to say the British Raj. At the end of my talk, we would be able to thread out the presence of India, Indian and Indianness in the works of Western writers, the influence of knowledge, Indian knowledge system on the colonial writers, the perception of colonial writers on Indian thought and philosophy, the aspects of Hinduism, Buddhism, Vedanta, and other spiritual dimensions in their writings. We'll also understand the global resonance of Indian thought and the continuity of Indian thought in contemporary Western literature. You see, when I approached GSTS for this talk series, I decided to dwell something which is very much related to history, and my discipline being literature very much resonates with the colonial past, both history and literature share. You see, you curate and you try to pick out events from history. And we as literature students, we try to have narratives woven from those historical texts. So my approach in the next talk would be to hear about T.S. Eliot, who in his very famous poem, The Wasteland, that he wrote in 1922, it has recently completed 100 years, talks about Shanti, 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 and the poem ends on this line. We'll also look to Octavio Paz, a Mexican scholar. We'll also look to his poem Brahma, where he talks about Upanishads and where he talks about other Hindu mythological texts. We'll also look into Harnath Hayes and W.H. Auden, along with W.B. Yeats, who talk about the Indic revival and along with the Celtic revival of the Irish Revolution. With that being said, I, Muhammad Shams, invite you to the 151st talk of GSTS. Over to Manvi. Thank you so much.
Thank you so much, Chums. And I request each one of you to join us next week to listen to his topic, Palette of Perspectives and Indian Colors on Colonial Canvas. What a great topic. So please join us next week also. And so now moving forward, coming together is a beginning, staying together is progress, and working together is success. So I've got the opportunity to work with my co-moderators, and each one of us have impacted me also personally. So now I would like to invite we couldn't they couldn't give us their insights today because they are traveling, but I would like to give a little bit introduction and some lines about each one of them. So if someone would ask me the synonym to dedication regarding GSTS, I would say it is our moderator Ajay Gupta. He's a charismatic personality and with a neat sense of understanding. He has always been there for the platform. And there would be some persons who don't actually come in limelight, but their efforts and impact is always there in the background. So one such is Mr. Saurabh, and he's one of the most hardworking person out there also. So then I would like to call the man behind the recording, editing, and YouTube, Mr. Shubham Tiwari, for always keeping a positive mindset in challenging situations. The stage is yours, Mr. Shubham. थैंक यू वेरी मच मानवी। ऐसे शब्द मतलब कई कम बार सुनने को मिलता है, लेकिन आज अच्छा लगा, कुछ मोमेंट पर बोलने का मौका मिलता है। तो काफ़ी चीज़ें वैसे लिखता नहीं हूँ, लेकिन आज लिखा कि ताकि कुछ बोल पाऊँ। खैर लेकिन समय इतना है नहीं, तो मैं कंक्लूड करूँगा 2-3 चीज़ों में। सबसे पहली बात कि जब मेरा टॉक हुआ, मैं हर बार बोलता हूँ जब भी मौका मिलता है, 28 मार्च 2021 को पहली बार ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर मैंने इतने लोगों के सामने बोला। और उसके बाद से मतलब पर्सनैलिटी में जो मेरा ग्रूम हुआ, प्रेसिडेंट बना सोसाइटी का, उसके बाद पहले सेक्रेटरी था, प्रेसिडेंट बना और आज मॉडरेटर हूँ 2.5 साल से। तो और सबसे सब बड़ी बात ये होती है कि जितने भी स्पीकर्स या टीचर्स बोलते हैं कि प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आपको बोलने का मौका मिलता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स बढ़िया हो जाती है, पर्सनैलिटी ग्रूम हो जाती है। पर मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है दोस्ती। यहाँ पर एक ही क्लास के अंदर मैं, सौरभ और अजय थे, 6 महीने हम लोग साथ में थे, लेकिन तब तक हमें मालूम नहीं था कि अजय भी है, सौरभ भी है, शुभम भी है, क्लास में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन इस प्लेटफॉर्म के बाद मतलब मनीष सर ने जिस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद से जो दोस्ती बनी और अभी तक हम लोग साथ में, हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, कम्युनिकेशन है, मतलब एक लय में होता है। तो वो सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात जो स्पीकर्स हैं, जैसे अनंत जोशी है जिसको मैंने इनवाइट किया था, जानता नहीं था लेकिन मैंने इनवाइट किया था एज अ स्पीकर आने के लिए, वो अच्छा दोस्त तरुण हो गया। और श्रुति दी जो एज अ गाइडेंस हमेशा हमारे साथ रहती है, अपने विचारों को रखती हैं। और एक चीज मैं और बोलना चाहता हूँ सर के लिए, मतलब ये ऐसा इसलिए नहीं है कि मुझे मौका मिला तो मैं बोल रहा हूँ। जब मैं पहली बार कॉलेज में आया, जब मुझे पीजी ढूंढना था कॉलेज के लिए, तो मैं पीजीज को ढूंढ रहा था। वहां पे मैं गया तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि आपका क्या सब्जेक्ट, वो भी उसी कॉलेज का था, श्यामलाल का। तो मैंने बताया कि हिस्ट्री और इंग्लिश है। तो उसने मुझे बताया कि हिस्ट्री एक सर है, मनीष सर है, उनसे अगर कांटेक्ट में रहोगे तो अच्छा रहेगा, हिस्ट्री अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, ये करेंगे। तो उस वक्त मेरे लिए प्रिविलेज था कि मनीष सर से कांटेक्ट करते हैं, किस तरीके से बात करेंगे। तो एक क्लास हुई थी सर को अगर याद हुआ, रूम नंबर 25 में आई थिंक, आपने डेमो क्लास लिया था एक दिन के लिए हमारा, शायद कोई टीचर नहीं आया था उस दिन। तो उस दिन मैंने आपको देखा था और आज एक प्रिविलेज फील होता है कि मतलब उस वक्त बस आपसे बात करने का कोशिश करते थे हम लोग, और आज आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठे हैं रात में पोस्टर्स क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बहुत ही बड़ी बात है सर हमारे लिए, जो कि मतलब इस प्लेटफॉर्म ने हमें प्रोवाइड किया। तो इतना ही बोलना चाहूंगा, खैर टाइम इतना परमिट भी नहीं कर सकता। सो थैंक यू सो मच मानवी। Thank you so much, Mr. Shubham. And we also have Mr. Shailendra Rathore, and he is the one who designs our posters behind the scenes. He's always there for us. He actually plans the pre-meetings and all this stuff. Shailendra, if you could present your views for 2 minutes. Okay, like, am I audible? Yes, you are. Okay, so thank you so much, Miss Manvi, and first of all, congratulations to our team and to Manthan as well for such a wonderful depiction today. And being a moderator or being a member of this initiative so far, uh, like plenty of things I have learned from this initiative, from Manish sir, from all my seniors and super seniors as well. But few of them I would like to put here. Agree with Shubham Bhaiya, obviously, agree with his point, but mine version of interaction or friendship is some little bit different, because what I feel is that what's the most important thing this initiative is providing to each and every scholar is the evolution through interaction. Like,
we moderators interact with different speakers, different guest of honors each Sunday, and this allows us to understand and to interpret that we are not living in this world alone. There are certain personalities in this world as well, and like we cannot live with our own ideas only. So I think that's something which is a very good point regarding this initiative, and I have learned like a lot of things. Can't specify each and everything here. So yeah, that's it from my side for now. Thank you so much, Challenge. Now we are coming to an end towards our program. So, from being an history professor to creating history, I would like to thank you, sir, for always being there for the platform. और हम लोग कभी कहीं ना कहीं होते हैं और हम लोग join नहीं कर पाते हैं कभी ना कभी. But you have always been consistent, and it shows your expertise in this area, and it has been instrumental in driving our success today. So I would like to invite you for vote of thanks. Thank you, Manvi. Really, it's wonderful. I start my 2 or 3 minutes emotional outburst with John Elia couplets. किसी से कोई भी सिकवा नहीं मगर तुमसे अभी तलक मुझे सिकवा है अब भी आ जाओ. That means I heard about so many I'm sorry, I'm outside, sorry. So these kind of words I'm not getting into it. So because अभी आदत मैंने अपने को रोकने की काफी कोशिश की. I was little upset in the when I started this program, because at least I could see at least 100 participants. But every time चलो आज हो जाएगा आज, तो वो एक वो जब नहीं पहुंचता है तो इट्स वेरी पेनफुल कि हमने इतना अच्छा इनिशिएटिव शुरू किया और हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए. प्रमोद सर, कैन यू गिव वोट ऑफ थैंक्स? सॉरी फॉर टुडे, सॉरी. मनीष जी, आपने एक इतना अच्छा हमारे महाविद्यालय के लिए इनिशिएटिव लिया था. मतलब इस बात की कल्पना करना भी बहुत कठिन है कि एक प्रोग्राम शुरू होता है, संडे के दिन शुरू होता है जो छुट्टी का दिन होता है, और हर संडे को होता हुआ हम 150 तक पहुंचे हैं आज. यह बहुत ही गौरव का विषय है. निश्चित रूप से थोड़ा सा दुख तो होता ही है जो संख्या हम देखते हैं. बाकी मैं कॉलेज IQSE का कोऑर्डिनेटर भी हूं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि इस कमी को भी हम दूर करने का प्रयत्न करें. बाकी तो कोई कमी है नहीं हमारे इस कार्यक्रम में. आज जितने भी शिक्षक जुड़े इस कार्यक्रम से, हमारे महाविद्यालय से और बाकी महाविद्यालयों के भी जितने भी बच्चे जुड़े इस कार्यक्रम से, और आज के जो हमारे स्टूडेंट स्पीकर थे मंथन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और हम फिर अगले संडे फिर इसी जोश और उत्साह से मिलेंगे. धन्यवाद. थैंक यू सर, थैंक यू सर. आज वो मूड नहीं था, नहीं तो मैं कभी पीछे नहीं रहता हूँ. सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स. एंड बस एक ही चीज अच्छी लगती है कि आप मेरे स्टूडेंट्स, बिकॉज यू आर द शेयर होल्डर्स. इट मीन्स हम बोलते हैं ना शेयर, तो आप लोग खुश हैं तो सब खुश हैं. मुझे उस तरह से प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई आए ना आए मुझे मतलब नहीं है. लेकिन जो हार्ड वर्क ये लोग स्टूडेंट्स दे रहे हैं इसके पीछे, दैट वाज
अनचैलेंजिंग, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुरा लगता है। दैट्स वाई, अदरवाइज इट्स ओके। ऑब्वियस एजुकेशनल फोरम पे हम लोग सेमिनार्स में जाते हैं, वहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि एजुकेशन डांस के प्रोग्राम में अधिक आते हैं, और मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम है, लेकिन एजुकेशन में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कई बार से, वेदर दैट इज माय स्टूडेंट्स और माय कॉलीग्स, कोई ना कोई एक्सक्यूजेस रहता है। सो इन बच्चों के पास नहीं था क्या? प्रमोद सर के पास नहीं था क्या? मेरे पास भी था एक्सक्यूजेस। मतलब देयर सो मेनी पीपल, हमारे पास एक्सक्यूजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी इतनी स्कार्सिटी है हमारे पास स्टूडेंट्स की, और देयर आर सो मेनी थिंग्स, बट हम इसको रन कर रहे हैं विद और वही क्यों रन कर रहे हैं? क्योंकि जो कमेंट आया संस्कार का, ये कि सर हम रेकमेंड करेंगे, दैट्स ऑल। मैं जानता हूँ कि ना आप रेकमेंड कर पाएंगे ना मुझे मिलेगा, लेकिन वो बात नहीं, मुझे नहीं मिल रहा है। ये बच्चे जो है कॉलेज के काफी एफर्ट दे रहे हैं, और उस एफर्ट को उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। दिस इज द पूरे दुनिया में तरह तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, और लेकिन इस प्रोग्राम को, इन बच्चों के एफर्ट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज माय आउटबर्स्ट, नथिंग एल्स। और मैं खुश हूं कि हम इतने दिन चला लिए, और सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर्स है वो आप लोग हैं, और अच्छा है। और राज ने एक क्वेश्चन पूछा था, नाउ फाइन, राज ने क्वेश्चन पूछा था कि सर आप उन बच्चों को बुलाइए जो नहीं बोल पाते। मुझे लगता है राज 150 में से 100 बच्चों ने बोला है कि सर हम फर्स्ट टाइम बोल रहे हैं। सो दिस इज अनदर वन एस्पेक्ट। सो ओके, मैं कैरी फॉरवर्ड करता जाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच, एंड दिस इज अ वेरी डेमोक्रेटिक फोरम। कल ब्लू पहन के आने को था, लेकिन सौरभ ने व्हाइट पहना है, फिर भी इट्स ओके। शुभम ने व्हाइट पहना हुआ, अच्छा नो, सो क्योंकि ब्लू हमारा लोगो है, तो मानवी ने हमें इंस्ट्रक्ट किया था कि ब्लू पहन के आना है। इट्स गुड, सो इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक सेटअप, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग अस। और एक सिमी मैम है, उनको मैं थैंक जरूर बोलूंगा, क्योंकि हमारे कॉलेज की नहीं भी हो कि जस्ट लाइक धर्मा मैम और नीरज सर, हमारे वो लोग तो कॉलेज के थे, उन्होंने कंटिन्यूस हमारा सपोर्ट किया है। तो लास्ट वर्ड फ्रॉम सिमी मैम, एंड दैट्स इट। सिमी मैम, इफ यू लिसनिंग। नमस्कार मनीष जी, एंड सारी टीम को बहुत बहुत नमस्ते। मैं आज हिंदी में ही बोलूंगी, आज मेरा मन हिंदी में बोलने को है। मैं आप सबसे ये कहना चाह रही थी कि आप लोगों का जो एफर्ट है इज कमेंडेबल, और जब कोई हम नई चीज शुरू करते हैं ना, तो उसमें चैलेंजेस होते हैं, एंड आई सपोज जब तक चैलेंज होते हैं ना, तभी तक और करने की हिम्मत होती है। सो दिस इज अ चैलेंज कि बच्चे अगर कम भी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मनीष जी। ये कई बार क्या होता है कि जब ऐसे लगने लगता है ना बच्चों को कि ओके ये तो हो रहा है, ठीक हो रहा है, पर आई सपोज दैट इज अवर फाइट कि हमारे को उनको मे बी समवेयर डाउन द टॉपिक्स, मे बी समवेयर डाउन द कोई ऐसा चीज कि बीच में हम उसको कोई ऐसे टॉपिक्स भी दें जो आजकल के बच्चों के हिसाब से थोड़े से ज्यादा हों। मे बी ये भी एक रीजन हो सकता है कि कहीं वो उनका इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा। Maybe something on technology little more, maybe something on the children, the way they are today, उसके ऊपर कुछ हम और चीज ऐड करें, which is also academic in a way, because in a way it is the medium is to connect and to inform. तो कहीं ना कहीं वो इतना सुंदर मीडियम जो है, we should not undermine our hard work. बच्चों का एफर्ट कमेंडेबल है, आप लोगों का एफर्ट कमेंडेबल है। कहीं ना कहीं हम लोगों को बस एक वो कनेक्ट का जो है, और ये दिस इज नॉट यू सर, इट इज एवरीवेयर थ्रू अक्रॉस यूनिवर्सिटीज, अक्रॉस सिटीज, अक्रॉस कंट्रीज, जहाँ पर एकेडेमिया थोड़ा सा बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया सफर कर रहा है। वो आज आप हैरान होंगे कि जनरली हर बच्चे के पास व्हाट्सएप होगा, लेकिन हर एक के बच्चे के फोन में न्यूज़पेपर ऐप नहीं होगा। उनको न्यूज भी व्हाट्सएप पे ही देखनी है, उनको हर चीज यूट्यूब या व्हाट्सएप पे ही देखनी है। भाई, क्योंकि एंड विच इज सरप्राइजिंग, जबकि उनको भी पता है कि दैट न्यूज इज समथिंग विच हैज बीन फॉरवर्डेड, दैट इज नॉट द रियल न्यूज ऑल्सो, नॉट फ्रॉम द रियल चैनल ऑल्सो, फिर भी वो यही करते हैं। 80% हम में से लोग ऐसे करते हैं।
विच इज द शॉकिंग पार्ट। हम न्यूज को न्यूज़पेपर से नहीं देखेंगे। मेरे को तो ये बात ही नहीं समझ आती है कि आप न्यूज को व्हाट्सएप से क्यों देखते हैं भाई। लेकिन दिस इज हाउ वी आर मूविंग, मतलब सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट इतना जबरदस्त है। सो आई सपोज वी नीड टू टैकल देम विथ मोर स्मार्टर टॉपिक्स, ताकि उनको थोड़ा सा कनेक्ट बने, जिससे वो इन्फ्लुएंस होते हैं पीपल। मतलब ऐसे बच्चों को, मतलब मेरा जो एक रहा है अभी मैं, एंड दिस हैज बीन वेरी रिसेंट, कि पीपल आर गोइंग टू इन्फ्लुएंसर्स, और वो ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं है, कुछ नहीं है, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट देम। वो उनको गाइड कर रहे हैं। मतलब इन्फ्लुएंसर्स जो शायद कॉलेज भी नहीं जाते हैं, जो पढ़ते भी नहीं है, जो सिर्फ अजीब अजीब उनके टॉपिक्स होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन दैट इज, आई डोंट नो, दिस इज हाउ द सोशल मीडिया इज इन्फ्लुएंसिंग द स्टूडेंट्स। सो हियर वी नीड टू वर्क अवर थिंग्स आउट, कि जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वी शुड बी फील ब्लेस्ड कि वो हमारे साथ ही हैं, और हमें उनमें और थोड़ों को जोड़ना है। So we should not feel discouraged, but you have continued this trend for so many weeks. That is the plus. आप ये सोचिए कि in spite of all these drawbacks and challenges आप फिर भी चल रहे थे। This is a plus. This is not a drawback, एक नंबर कम है। आप ये देखिए कि आजकल actually में it is a huge issue. No, ma'am, it's not about the numbers. It's about whom you connect. At least they should. Absolutely. नहीं, but this challenge is there, sir. इस सब जगह ये है। Talk and they should come and they should stand with us. This is the. बिल्कुल, I'm not bothering about anything. But at the 50th, 100th, 150th, they should come and they should stand with us. This is only basic requirement. बिल्कुल, क्योंकि नहीं, this I also feel कि लोग उस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा रहे हैं, but they are not responding in the same way that they should. वो that is true. But सर एक चीज मैं ये बताऊं कि हमारे पास स्पीकर्स अधिक होते हैं और सुनने वाले कम हो जाते हैं। अभी हमारे पास स्पीकर्स इतने हैं, मार्च तक वी आर बुक। तो बिल्कुल सर। और चलिए मैम, इस थैंक यू मैम, मंथन पूरे इसमें मंथन के टॉक को हमने स्नैच कर लिया है। थैंक यू वेरी मच मंथन फॉर गिविंग अस अ वंडरफुल टॉक। थैंक यू मंथन, रियली ओपन योर कैमरा and really thank you Manthan for your hard work and given us a very decorative idea about the north and south, and thank you all moderators who are still with me. So thank you all, thank you very much. So it's been pleasure to connect to you people. Thank you, have a nice day. Sams milte hain aapse next Sunday. Thank you Pramod sir, all my MPhil PhD graduate undergraduate students. जितना मैं बोलता हूँ उतना लोग होते भी नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी चलेगा. So I'm not worried about the students. I'm worried about at least for the 150th they should stand with us, my college, my university. That's all. Thank you very much, my students. Okay, thank you very much. Thank you sir.